सर आपका माइक ऑफ है। अच्छा जी. So let's start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, Today we are going to learn about the process costing. The previous session we discussed very briefly the process costing. Now today we will discuss in detail the concept of the process costing. So the process costing, this method is applicable in the industry where the goods are produced in continuous and repetitive operations, and cost as average over the unit produced during the period. So, and another characteristic of this costing, the goods are similar, homogeneous, and so this method is suitable for industry producing similar goods or homogeneous goods, and where the production is in a continuous flow. A process can be referred to as the subunit of an organization, specially defined for the cost collection purposes. So now we will discuss the more characteristic of the process costing one by one. So the first characteristic of this method is as we have already mentioned that the production is in continuous flow with no break in time or sequence or substance. So there is no variation in the process of producing the good or substance. This type of operation costing is used for ascertaining the cost of the at each process or stage of manufacture. So when the product passes in different stages, through different stages, so at each stage we will ascertain the cost of the product. For example, if there are three processes or three departments, so at each stage, at each department, we will collect the cost and ascertain the cost of the product at that stage. For this purpose, we construct or we prepare a cost of production report, which is called CPR, abbreviated. So in that report, we will collect, summarize, and compute total and unit cost of the product. So production is accumulated and reported by the department. So for each department, for example, there are three departments mixing, grinding, and packaging. If the product passes through first mixing, then grinding, then packing. So at each stage, what we are going to do, we will collect and summarize the cost of the product at each stage and prepare a report which is called cost of production report. Now, uh, in that report, we will not only calculate or compute the total cost, but also the unit cost. So, and in this way, we are accumulating or calculating the cost reported by each department. Costs are posted to departmental work in process. So each stage or each department, we will open a separate work in process account for each stage or each department of through which the product passes. Production in process at the end of period is restated in terms of completed unit. So when the product passes through each stage, some units are left uncompleted for that incomplete for that process. So we will ascertain the stages of completion of all the unit at each stage. For example, if it is a mixing department or it is a grinding department, so some units will be completed and transferred to next department,
but some unit will be remain in that stage as incomplete, and their degree, and we will find out their degree of completion as regard to the material, uh, labor and factory overhead. So sometime the unit is incomplete toward the material or labor or FO, conversion cost. Ji. Hello? Any question? Ji. Acha. Total cost charged to the department is divided by total computer production of the department in order to determine a unit cost for a specific period. The cost of completed units of a department are transferred to the next processing department in order to arrive at the total cost to the finished product during a period. So let's understand uh, the flow of cost with the help of a diagram. So suppose this spice, we are considering a spice manufacturing department. So there may be three departments. For example, the first department is mixing, where all the ingredients are mixed in the particular proportion, which is a recipe of preparing that spice. So the first department is mixing department. All the ingredients are mixed here. Then it passes to the grinding department. So for crushing, so when the ingredients are mixed in particular proportion according to the recipe, then the next step is to pass them on to the grinding department, where all the ingredients are ground and change into powder form. So then after grinding, the product passes to the packing department. So in the packing department, this product is which has been ground and is now ready for the packing, is packed in the packing department, and it is packed according to its weightage or brand or any thing like that. So after packing, the product moves to the finished good storeroom. So for each, as you know, as we can see that there are three stages: mixing, grinding, and packing. So we call them as department: mixing department, grinding department. Actually, these are the stages of production. So in the mixing department, for the mixing department, we open a work in process account. Similarly, for grinding department, we also open a work in process account, and packing department, we also open a work in process account. So three work in process account will be open. Now we can see that in the first department, all the ingredients are mixed, which is material, and then the conversion costs are added, applied. So that all the three costs appears here: material, labor, and factory overhead. So these costs, when the product moves from the mixing department to the grinding department, so these costs also move along with the product. So we can see that these costs moved from the from the mixing department to the grinding department. So it is you can see that with the help of arrow, we have shown that these costs moved from mixing, work in process mixing, to the work in process grinding department. So you can see that 3x I have shown for this cost, the cost received from a mixing department. So this cost is represent the cost received from previous department. The previous department is mixing department. So in this department, again, some costs are added. So we can see that only labor and factory overhead, FOH, has been added
in this department, no material has been added. There may be some processes where the material could be added. So, but in this case, since it is a grinding department where the ingredients are crushed, so no material is added in this department, and only labor and FO is being added to the work in process account. So one cost represents, this cost represent cost received from mixing department plus labor and FO has been added in this department. Now, when the product moves from the grinding department to the packing department, so again, we can see that this these costs move from the grinding department to the packing department, and you can see with the help of this arrow, we can see that this cost has been moved from the work in process grinding to the work in process packing department. Now, in the packing department, all the three cost element is appearing. You can see that the material, we added material, labor, and factory overhead. Whereas in the previous department, only labor and factory overhead were added. But in this department, the material is also added. Now the material is actually the packing material, which has been added to this department. So all the three element appear in this department. So material, labor, and FO. After packing, the product moves toward the finished goods storeroom. So we can see that the product moves, these costs move toward the finished goods storeroom. So if you have any question regarding the flow of cost from one department to other department, you can ask question. किसी का कोई question है तो मुझे बता दे. Any question from the student? Achha, so now in the next slide, we can see that there may be different there may be a different situation. So there may be some department which are not in sequence, but may feed another department. Just like you can see that there's a cutting department, and then is the sanding department. But before the product moves from the sanding department to next department, we can see there is another casting department which feed this depending upon the industry and the production. So the cutting department first process the cutting, then the product move toward the sanding department. हेलो जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, थोड़ी थोड़ी कट रही है. कट क्यों रही है इसकी? अच्छा जी, मेरा ख्याल में दरम्यान में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं फिर रीस्टार्ट कर लेता हूँ. आ रही आवाज? ये कहाँ पे कट हुई थी कुछ? अच्छा जी. Now there may be some production processes where the department or process is not in sequence. So in this slide, we can see that the first department is the cutting department, and the product move from the cutting department toward the next department, sanding department. But before moving to the next department, there is another department which is feeding the sanding department, that is the casting department. So before the product moves, it receives cost, or it receives some additional equipment or cost from
the casting department, and then after processing in the sanding department, the product move to the assembly department. Any question? कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, ये विजिबल है, ये अपना प्रेजेंटेशन विजिबल है? एक्सक्यूज सर प्रेजेंटेशन विजिबल है। आप उर्दू इंग्लिश बोल रहे हैं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर से कहें उर्दू में पढ़ाए। जी चुप कर। जी, समझ नहीं आई। सर वो बच्चे कह रहे हैं उर्दू में पढ़ा दे, हमको इंग्लिश नहीं आती, वो किसी का बैकग्राउंड पढ़ा दे थोड़ा सा मेहरबानी होगी। आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, हेलो जी सर, वो बच्चों के बारे में मैसेज आ रहे हैं कि आप इंग्लिश में ना पढ़ाएं, उर्दू में पढ़ा दें। उर्दू में पढ़ा दूँ? अच्छा चले ठीक है, मैं उर्दू में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें ये जो है अपना सीक्वेंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें मतलब दरमियान में एक और डिपार्टमेंट ऐड हो सकता है। अगर इस जो जैसे आपके देख रहे हैं कि कास्टिंग डिपार्टमेंट से एक कॉस्ट ऐड हो रही है इन सेंडिंग डिपार्टमेंट। सो जब ये मूव करता है सेंडिंग से असेंबली डिपार्टमेंट में, तो ये कास्टिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी लेके चलता है। तो इस तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आगे फिनिश गुड्स में चला जाता है। तो इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि हमने तकरीबन हर डिपार्टमेंट का एक वर्क इन प्रोसेस अकाउंट सेपरेटली खोला है। ठीक है, तो इसमें 4 डिपार्टमेंट है। कटिंग डिपार्टमेंट है, सैंडिंग, और दरमियान में एक कास्टिंग है जो इन बिटवीन कटिंग और सैंडिंग, और इसका थोड़ा सा इस तरह, और फिर असेंबली डिपार्टमेंट। तो 4 डिपार्टमेंट के लिए हमने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट खोला है सेपरेट। तो जिस तरह कास्ट मूव करती है उस तरह ये अगर आप देख रहे हैं कि इस एरो के निशान से एक जैसे जैसे प्रोडक्ट गुजरती है, साथ कॉस्ट भी मूव करती है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। तो इधर हमने देखा है जैसे कि बिफोर मूविंग टुवर्ड द असेंबली डिपार्टमेंट, तो सैंडिंग डिपार्टमेंट में यहाँ से कॉस्ट आ रही है कास्टिंग डिपार्टमेंट से। कास्टिंग डिपार्टमेंट से कॉस्ट ये जी जी सर सेंडिंग डिपार्टमेंट का नहीं समझ आया। सेंडिंग जो बिट में दरमियान वाला है, ये क्या काम कर रहा है, किस मकसद के लिए है? हाँ, कटिंग का ये समझ आता है, असेंबली समझ आता है, जी जी जी, सैंडिंग सेंडिंग डिपार्टमेंट इसमें असल में डाई कास्टिंग होती है। ठीक है, ये डाई यहाँ से कास्टिंग डिपार्टमेंट से यहाँ से आई है यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब आप जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो या तो आप फोर्ज करके बनाते हैं गर्म कर करके, या फिर उसका सांचे में ढाल के उसको बनाते हैं। ये सैंडिंग डिपार्टमेंट में यहाँ असल में पैटर्न आता है। सैंडिंग डिपार्टमेंट में पैटर्न डालते हैं, और चूंकि जब कोई इवन अगर लोहा भी डालें तो वो गरम गरम तो सैंड जो है उसको हीट बर्दाश्त कर लेती है, तो उसके अंदर पैटर्न होता है, बना होता है सैंड के अंदर। उसमें पिघला हुआ लोहा डालते हैं, तो वो पैटर्न जो उसके अंदर सैंड के अंदर आपने बनाया है, तो वो उसकी शेप पकड़ लेता है। ठीक हो गया? तो ये चूंकि आप कास्टिंग कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं या कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आप कोई चीज़ मेटल पिघला के उसको शेप दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप बना रहे हैं। तो ये इस तरह इस वन ऑफ द मतलब है कि प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है कि आप बना क्या रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई आप एक ऐसा कंपोनेंट बना रहे हो जो इस तरह के कास्टिंग करके उसको बना रहे हो। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? आगे हम चलते हैं। तो जैसे ये सैंडिंग आपका बन गया वो प्रोडक्ट, तो आगे फिर असेंबली डिपार्टमेंट, जब वहाँ पे असम्बल होगा, असेंबली डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे जाके वो असम्बल होगा, देन इट मूव्स टुवर्ड द फिनिश गुड स्टोर रूम। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम आते हैं, लेट्स डिस्कस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो कि आज हम हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया शुरू में कि हर स्टेज के लिए
we collect and also calculate the unit cost Oh. at each. जी हेलो जी 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 अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम आपकी आवाज बार बार ड्रॉप हो रही है और बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है या बार बार ड्रॉप हो रही है। इसकी वजह से हमें समझ नहीं आ पा रहा। प्लीज आप पहले आवाज का मसला ठीक कर दीजिए। आवाज का मसला था। हेलो। अब आवाज कैसे आ रही है? ठीक आ रही है? यस सर, ठीक आ रही है आवाज। पहले ठीक आ रही है कि अब ठीक आ रही है? आप ठीक है सर, ठीक आ अभी रही है। ठीक है। अभी ठीक है या पहले ठीक है? क्योंकि मैंने वो कानों से वो उतार दिए हैं। ढूंढ रहे बस ओ, ठीक आ रही है सर। हाँ जी, यस सर, ठीक आ रही है आवाज। अब ठीक है? जी अब सर। आवाज ठीक है? जी सर, अब आवाज ठीक सही आ रही है। कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, चले। तो हम डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अगर आप देखें तो हमने हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। तो उसमें हम देखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच स्टेप देयर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितने स्टेप्स हैं इन्वॉल्व हैं उसको बनाने में, और उसमें हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं या बनाते हैं। तो अब आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में। A departmental cost of production reports shows all costs chargeable to the department. It is also the source for summary journal entries at the end of the month. The cost of production report shows total cost, total and unit cost transfer it from a preceding department. अच्छा, cost of production अगर if it is a first department तो फिर तो previous department exist नहीं करता, ठीक है। तो जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से तो कोई कॉस्ट नहीं आ रही है इफ इट इज अ फर्स्ट डिपार्टमेंट। अगर ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में देखा है कि पिछले डिपार्टमेंट से भी कॉस्ट ऐड हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में हम पहला जो कॉस्ट हम दिखाएंगे दैट विल बी दी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद फिर कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट होता है कि इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ऐड हो रही है, ठीक है। वो तीनों कॉस्ट एलिमेंट भी हो सकती हैं या दो कॉस्ट कम से कम होंगी। जैसे कन्वर्जन कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट मीन लेबर एंड FOH। सो मटेरियल may not be added if it is not a first department, ये सेकंड डिपार्टमेंट में या थर्ड डिपार्टमेंट में जो भी है, ज़रूरी नहीं कि मटेरियल ऐड हो। मटेरियल मोस्टली मटेरियल इज एडेड इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। सम टाइम इन सम प्रोसेसेस द मटेरियल आल्सो एडेड इन द सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट। उससे ये होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ भी सकते हैं आपके। अगर मटेरियल आपके किसी सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में और ऐड हो रहा हो तो उससे नंबर ऑफ यूनिट्स में फ़र्क पड़ता है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ भी सकता है। अगर लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस ये होता है कि मटेरियल जो होता है दैट इज एडेड इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक हो गया। Units cost added by the department, total and unit cost accumulated to the end of the operation in the department. तो हम हर डिपार्टमेंट के लिए एक तो टोटल कॉस्ट की फिगर निकालते हैं प्लस यूनिट कॉस्ट की फिगर निकालते हैं। द कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, द कॉस्ट ट्रांसफर टू सक्सीडिंग डिपार्टमेंट और टू फिनिश गुड्स स्टोर रूम। तो इसमें हम एक इलादा से एक वर्किंग करते हैं कि कॉस्ट जो है वो कितनी ट्रांसफ़र हुई है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, ठीक है। और फिर हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रह गई है उसकी कॉस्ट क्या है, यूनिट कॉस्ट क्या है और उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट और इसके लिए हम बनाते हैं एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। नाउ लेट्स डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो the cost of production report starts
from the name of the name of the company or department जो भी है आप उसके बाद इसके ये name of the department फिर इस name of the company या business and then followed by the name of the department और उसके बाद है cost of production जो name of the जो statement है report है उसके बाद फिर ये है फिर टाइम पीरियड जो है हम वो मेंशन करते हैं कि ये मंथ की है या जो भी है वीक की है जो भी है तो फॉर द मंथ जनवरी एंड देन अच्छा अब इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फर्स्ट स्टेप में हम क्या कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं ठीक है क्वांटिटी स्केड्यूल जो है वो हम क्वांटिटी का जो हिसाब किताब है वो मेंटेन करते हैं कि कितनी क्वांटिटीज हमारे पास थी कितनी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ यानी उसकी अमाउंट की बात नहीं कर रहे फिजिकल क्वांटिटी हम यूनिट्स कितने हमारे पास आए पिछली डिपार्टमेंट से या हमने अगर इफ इट इज फर्स्ट डिपार्टमेंट हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव पुट इनटू द प्रोडक्शन कितने यूनिट्स हमने प्रोडक्शन में स्टार्ट किए हैं ठीक है और उसके बाद कितने यूनिट हमारे वर्क इन प्रोसेस में रह गए हैं और कितने यूनिट हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट भेजे तो हम इसको देखते हैं यूनिट स्टार्टेड सिंस इट इज़ अ फर्स्ट डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं कि मिक्सिंग डिपार्टमेंट है तो मिक्सिंग हमेशा फर्स्ट डिपार्टमेंट तो यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट ना होता तो हम यहाँ पे होता हम लिखते यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट सो यहाँ पे यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस वो है 50,000 अब 50,000 में भी केजी में भी लीटर जो भी इसका यूनिट होगा ठीक है तो ये यूनिट है फिजिकल यूनिट देन यूनिट ट्रांसफर टू अब नेक्स्ट जो फिगर हमारे पास नज़र आ रही है वो है दैट इज़ यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट कि हमने यूनिट्स फिजिकल यूनिट्स अब इसमें जो अमाउंट आपको नज़र नहीं सिर्फ ये फिजिकल यूनिट हैं इट मे बी केजी और जो भी यूनिट हो केजी हो वेट के हिसाब से हो या जो जिस हिसाब से भी है तो ये यूनिट्स जो है ये हमारे पास जो हमने यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट यानी ट्रांसफ़र वही होते हैं एक डिपार्टमेंट जो इस वो स्टेज के लिहाज से कंप्लीट हो मसलन मिक्सिंग के लिहाज से वो यूनिट जो है वो कंप्लीट हैं अगरचे अभी इस पे और भी प्रोसेसेस अप्लाई होने हैं इसमें ग्राइंडिंग भी होनी है फिर इसमें पैकेजिंग भी होनी है मे बी कि कोई और प्रोसेस भी हो तो मिक्सिंग के लिहाज से ये यूनिट कंप्लीट थे मिक्सिंग के लिहाज से ये यूनिट कंप्लीट थे इसलिए हमने ये यूनिट जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया आगे उसके बाद जो हमारे पास यूनिट आ रहे हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी जो फिगर वो होगी यूनिट स्टिल इन प्रोसेस ठीक है ये वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी तो इसमें जो यूनिट इस प्रोसेस से इनकम्प्लीट हैं इस प्रोसेस जो करंट प्रोसेस है मिक्सिंग वो यूनिट है 4,000 तो अभी सही तरह वो उसका ये मिक्सिंग का जो है वो सही तरह के उससे नहीं हुआ इसका क्या नाम है इसका सही तरीके से इसका ये प्रोसेस नहीं हुआ दैट्स वाई दे आर इनकम्प्लीट तो अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रह गई है ये लाइनें कोई डाल रहा है प्लीज़ इसको ख़त्म कर दें अच्छा यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस में अब हम उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखेंगे कि जो यूनिट इन प्रोसेस रह गए हैं उसमें मटेरियल तो पूरा है लेकिन जो लेबर वाइज और एफओ वाइज यानी कन्वर्जन कॉस्ट वाइज वो हाफ कंप्लीट है ठीक है हाफ लेबर एंड एफओ यानी कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो हाफ इस पे अप्लाई होते इसलिए दैट्स वाई दे आर इनकम्प्लीट अगर ये भी कंप्लीट होते तो फिर ये यहाँ पे अपीयर ना हो रहे होते ये वर्क इन प्रोसेस ये मूव या ये यहीं पड़े होते कंप्लीटेड या फिर ये मूव कर जाते नेक्स्ट डिपार्टमेंट सो तो ये हमारे पास दो ही फिगर्स हैं ये जो हम इसको अगर हम इसको ऐड करें तो हम हाँ इसमें एक और चीज़ भी है कि सम यूनिट कुड बी लॉस्ट ठीक है ड्यूरिंग द प्रोसेस तो इट इज़ अ नॉर्मल
प्रोसीजर या आप इसको नॉर्मल प्रोसेस कहें कि सम टाइम द यूनिट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो उसके डिफरेंट वजूहात रीजंस हो सकती हैं कि यूनिट्स क्यों लॉस होते हैं, वाई द यूनिट्स आर लॉस्ट। वो हीट की वजह से एवापोरेट भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं हीटिंग के या कुछ और इस तरह के जिससे यूनिट्स लॉस्ट हो जाते हैं। तो वी कैन सी दैट the units are lost, 1000 units were lost during the mixing process. So अगर हम इसको एड अप करें तो वी गेट 50,000। तो हमारा फिजिकल काउंट का जो रिकनसाइल हो गया जिसमें 50,000 वी हैव स्टार्टेड और उसमें 45,000 units were completed and transferred to next department. 4,000 are still in process because they are incomplete. From the mixing point of view, they are incomplete. तो incomplete कितने हैं? Material तो इसमें पूरा है, लेकिन they are incomplete towards the conversion cost. तो conversion cost की वजह से वो incomplete हैं, इसमें अगर हमने mention भी कर दिया। इसके बाद ये यूनिट जो है 1000 दे आर लॉस। तो टोटल हमारे जो काउंट है वो पूरी होगी इसमें 50,000 और ये रिकनसाइल हो गया 50,000 के साथ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है हम देखते हैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब हम कॉस्ट कितनी चार्ज हुई है इसमें, इस डिपार्टमेंट को कॉस्ट कितनी, इसमें कॉस्ट एडिशन कितनी हुई है, कॉस्ट जो है पिछली डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट आई है। चूँकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है लिहाजा यहाँ पे कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट ज़ीरो होगी। लेकिन इफ़ इट इज़ नॉट फर्स्ट डिपार्टमेंट, इफ़ इट इज़ सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट, तो इसमें ए पोर्शन कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट का भी होगा, वो भी हम एक मेंशन करें, और प्लस इस डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट ऐड किया है। सो वी कैन सी दैट सिंस हम दो कॉलम क्रिएट करेंगे, यू कैन सी टोटल कॉस्ट का एक कॉलम और दूसरा यूनिट कॉस्ट का, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी नीड अ यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। सर आवाज चली गई है आपकी आवाज। सर भी चले गए। स्टेप इज के कॉस्ट कितनी नहीं आ रही सर आवाज। हम्म, यदि मेरा नेट खराब हुआ है या सबका हो? ये सर ही नहीं आ रहे यार, सर की स्क्रीन भी चली गई है, सर का नेट खराब हो गया। सर की लाइट चली गई है। सर डिस्कनेक्ट हो गए। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आगे काली स्क्रीन आ रही है अभी। नहीं आ रही। सर नदीम नानी
सर सुन से आएंगे सुन से। क्या बना अजीजुर रहमान? अजीजुर रहमान, हेलो। यस सर। हेलो आवाज हेलो आ रही है? सर। यस सर, आवाज आ रही है आपकी अभी। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। और ये अब स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं में हो रही। शेयर हो रही सर। सर आवाज सर आ रही है स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आवाज आ रही है सर अभी। अच्छा, सर जी ये स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। ठहर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर शेयर भी स्क्रीन, कर ठीक है। सकते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। ये स्क्रीन आ रही है, शो हो रही है? सर अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। कैसे हैं सर आप? अब आ गई है। आ गई सर, स्क्रीन आ शो हो गई। रही है? सर मुबारक हो, आ जी सर गई। हो गई है। आ गई है, अच्छा ठीक है। मुबारक हो। खैर मुबारक खैर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये है थैंक यू सर। जो नेक्स्ट स्टेप है जो नेक्स्ट स्टेप है, ये है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। जो पहला स्टेप है हमने कंप्लीट किया फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। उसमें अमाउंट नहीं है, हम फिजिकली वो कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं कि कितनी क्वांटिटीज हमने स्टार्ट की हैं या आई हैं पिछले डिपार्टमेंट से, और कितनी कितनी क्वांटिटी हमने दूसरे डिपार्टमेंट को भेजी और कितनी हमारे पास अभी रह गई वर्क इन प्रोसेस में, ठीक है। उसका काउंट हमने किया है और उसको रिकंसाइल किया हमने यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब हम कॉस्ट को देखेंगे कि कॉस्ट कितनी चार्ज हुई है इस डिपार्टमेंट में। इसके दो हिस्से हैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। एक हिस्सा है कि कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कितनी है, लेकिन चूंकि दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट, सो कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पास नहीं है, वो दैट विल बी ए जीरो। सो अब इसमें हमने दो कॉलम क्रिएट किए हैं, एक टोटल कॉस्ट का और एक यूनिट कॉस्ट का, ठीक है। दो कॉलम हमें नजर आ रहे हैं। तो हम पहले फर्स्ट जो स्टेप है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, सिंस दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट, सो द कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट इज जीरो। नेक्स्ट इज द कॉस्ट एडेड इन दिस डिपार्टमेंट। अब ये हम ये मालूम करेंगे कि इस डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऐड हुआ मटेरियल जो है, अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे हमने ऐड किया 24,500 का, ठीक है। अब हमने इसकी यूनिट कॉस्ट निकाली है 0.50। अब ये यूनिट कॉस्ट किस तरह निकली है, वो हम इस तरह निकलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट के थ्रू। तो इक्विवेलेंट यूनिट हर कॉस्ट एलिमेंट का हम निकालेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब ये है कि जैसे कि आपको यहाँ नजर आए कि 45,000 यूनिट, अगर फिजिकल क्वांटिटी स्केड्यूल में देखें 45,000 वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट, तो ये कंप्लीट यूनिट गिने जाएंगे, ठीक है। इसको हमने कंप्लीट यूनिट गिना है 45,000 को, क्योंकि दे वर कंप्लीटेड। सर फिर आवाज चली गई आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। आवाज तो तब आएगी ना जब सर बोलेंगे। लो जी सर, फिर चले गए। ऐसे ही करते रहे तो करोड़पति हो जाओगे। ऑफर अच्छी दे रहे थे सर। ये लो जी, स्क्रीन भी गई। छुट्टी कर लें। क्या वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बुलाओ ना भाई। ये अकाउंटिंग की क्लास है। अजीजुर रहमान, अकाउंटिंग की क्लास की आवाज नहीं आ रही, इंजीनियरिंग वालों को बुलाओ अब। ये इंजीनियर बैठा हुआ इधर बीच में एक। वो पेज का प्लास पाना वो भी दो ना इसको, ताकि कुछ करे। सर ने उसका नेट लगवाया हुआ है पीटीसीएल का, ऊपर से जहाज नहीं गुजरे तो बंद हो जाता है। हमें मिसालें भी वो पीटीसीएल की देते हैं, रिटायर जो उधर से हैं। नदीम नानी वाले को बुला, अच्छी ऑफर देगा। साले फर्नीचर किए हैं। हाँ फर्नीचर भी है।
चल तो ठीक ही रहा है लेकिन नदीम दादी वाले को बुलाओ। और ये लड़कों के नाम तो देखना बीच में आते हुए गाजी भी आई कोई। और मैं देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं इधर हाँ जी। एक फोटो वाला भी चल रहा है वो एक बड़ा जबरदस्त क्लिक चला था। एक मोटरसाइकिल फेर रहा होता है वो कहीं रेसर गिरता है ना तो बाइक जो उनसे खुद ही चल रहा होता है पीछे चल रहा होता है जी ये फोटो कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है। मैं खींच के रखो। कोई आईफोन भी है इधर। आईफोन भी है वो चंद नाम नजर आए हैं। तो किसी ने आईफोन 5s ले लिया तो आपको जाने नहीं छोड़ रहा। नहीं अभी गोरी गोरी आएगा आखिर में। पुत्र छुट्टी कर भी है। वकार सका भी आ गया। एक्टिंग का बादशाह भी आ गया। अजीज गुजर कौन है? ये बोला रिकॉर्ड कब आएगा? यार सर को मैं कॉल मारता हूँ, सर जी क्या होता है पूछते हैं सर से। लगता है बोला रिकॉर्ड का टाइम अभी रहता है, अभी नहीं आया हुआ। टीटू पार्टियां कर लो आप सारे। यार अजीज हनान किधर है? हनान पता नहीं यार, कह रहा था कि क्लास लूंगा, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा। यार था मुझे के लूंगा क्लास, अभी तक आया नहीं पता। ओ टॉपर बंदे हैं यार, वो क्लास लेके क्या करेंगे। वो MIS की सही चल रही थी यार, 2 दिन बिल्कुल कोई रोला ही नहीं हुआ नेट का। इधर भी ठीक है यार, ये भी सही है यार। वो उन सर का वो तो सारा डाटा निकाल लेते हैं, उनको उनका नेट ना चले। अच्छा सर किधर मुझे गए? मैसेज आ रहे हैं क्या हो रहा है, सर किधर है। रुक मैं सर को कॉल मारता हूँ। करो ना। रेडियो भी ऑन कर दो इतनी देर में। FM 100 सर कॉल नहीं पिक हो रही। लड़कियां मैसेज कर रही हैं मगर किसी की भी नहीं हो रही। थोड़ा सा इंतजार कर रहे। कॉल नहीं पिक कर रहे की है मैंने, नहीं पिक कर रहे। ऐसे ही लगे रहो तो कॉस्ट हो जाएगी एक दिन। वो शुरू में नहीं कह रहे थे कॉस्ट का ही थोड़ा रोला बनेगा, देखो क्या होता है। 1 बजे तक है ना क्लास? 1 बजे तक हाँ जी। बस ये 1 घंटा है, शायद बीच में सर कहीं ना कहीं आ जाए। वो सर ने 20 मिनट वाली ब्रेक दी है, समझे नहीं हो तुम लोग। वो ब्रेक मांग के दी जाती है वरना उनका तो दिल नहीं होता। वो ब्रेक के दौरान वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आओ ये चाय पी के आते हैं, उठो ढाबे पे चलते हैं। ढाबा तो खुला ही हुआ, इन्होंने पता नहीं क्यों सारा ही बंद हो गया। अजीजुर रहमान सब इस्लामाबाद सारा बंद। नहीं सिर्फ स्कूल्स कॉलेजेस बंद है, बाकी सब खुला हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ये हमारा दफ्तर भी बंद कराओ ना यार। आप जाके ये किसने वोट दिया था? मुझे बताओ ना जरा। आप जाके ऑडिट ये यूथिया कौन है जिसने? ये सबसे पहले ये आपने घबराना नहीं है। पेपर देख के है ना, कास्ट का पेपर आएगा, घबराना नहीं है देख के। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। क्लास लेके भी घबराना नहीं है।
और आज शाम को MIS की क्लास है 7:30 बजे। हाँ जी, और दोबारा होनी है ना, वो कह रहे थे दोबारा। पोर्टल से लॉग इन होना है। ठीक है। देखो क्लास का ये कौन है? पता नहीं इतना कौन है। काम ना करो भाई, दफ्तर का माहौल है, क्या कर रहे हो ये क्या हो रहा है? तो कैसी कैसी चीजें आ गई इसमें। ना करो यार ये। बस यार है ये अमी बाबू। यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ठहरे जी, ये एयरपोर्ट वाले आए हैं। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध ले। दोनों बेल्ट बांधे ना, सीट बेल्ट वाला भी और पैंट वाला। एवरीवन, रहमान आपके लिए मैसेज आया भाई। बाबा जी से को रहमान जवाब दे दो भाई। बाबा जी लाहौर बहुत सारे शहर पाकिस्तान में। तुर्क बे टू एवरीवन, हाय दी अल्लाह। सर तुर्किश आए हुए हैं इधर। बिग फैन सर, तुर्गुत पे बिग फैन। हाँ जी, आवाज आ रही है? सर आवाज आई है सर, तस्वीर नहीं आ रही वो जो। मैं अभी इसको ठीक करता हूँ। जी सर, आप बहुत खुशी हुई आपकी आवाज सुन के। ठीक है। सर आप हमारे जज्बात का अंदाजा नहीं लगा सकते इस वक्त। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ये होस्ट ने ख्याल है। सर यहाँ पे वो जो आपके यहाँ कोई वो इंजीनियर नहीं है सर सॉफ्टवेयर का? हाँ, उसका नाम क्या है? सर बासिम, वो रात को सारे जिक्र करते होते हैं, कोई मसला हो ना तो वो कहते हैं बासिम ये हो गया है ऐसे करो, या वो शफीक साहब हैं कोई, इन दो के नाम आते हैं। आप इस तरह करें, शफीक साहब को जरा फोन लगाएं ना, उसे कहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। उसमें लिखा है होस्ट डिसेबल्ड द पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर। सर शफीक को कॉल करें। हाँ, शफीक साहब का नंबर नहीं सर, मैं कॉल करता हूँ। गाड़ी नंबर से करो, गाड़ी नंबर से। क्या हुआ? शफीक साहब सुन रहे हैं वैसे? ICMA पाकिस्तान तो कहो सर को भी तो होस्ट बना दे। शफीक साहब हमें सुन रहे हैं कि नहीं? माशाल्लाह देयर इज लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन काफी है। जी सर, माशाल्लाह माशाल्लाह पार्टिसिपेशन तो बहुत है, लेकिन अब ये स्क्रीन शेयर पे कह रहे हैं कि वो होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। तो ये अब जी वो आके आपको को होस्ट बनाते हैं तो फिर आप कर सकेंगे। हाँ जी, को होस्ट बनाए जरा। सर आवाज आ रही है? हेलो सर जी। जी आवाज आ रही है खत्म हो जाएगी। सर वो कह रहे हैं मैं चेक करके बताता हूँ। अच्छा सर, चलो अब आप कर सकते हैं। सर अब आप कर सकते हैं। बिल्कुल दे दिए। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग दे दी उन्होंने। वेरी गुड। आ गई सर, आ गई स्क्रीन नजर आई है सर। अच्छा सर लैपटॉप में जिंदगी आई है। अच्छा जी, वेयर वर वी? कहाँ थे हम? सर हम यहाँ पे थे बस पीछे। हाँ ये वाला आ गया था, ये पॉइंट हो गया था 4500। पीछे नहीं यार, ये मटेरियल 45,000 जमा 4,000। हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है ना। मटेरियल अब हर एक कॉस्ट जो एलिमेंट है ना, जैसे 3 कॉस्ट एलिमेंट है, इफ यू नो दैट, मटेरियल, लेबर एंड FOH। ठीक है, अब हर एक के हमने इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। जी अब यहाँ पे अगर आप देखें ब्रैकेट में
45,000 वर कंप्लीट, वो हमने ट्रांसफर किए कंप्लीट एंड वर कंप्लीट एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो हमने इसको कंप्लीट, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट यूनिट ले ली। बाकी जो इन प्रोसेस थे 4,000 वो मटेरियल वाइज कंप्लीट थे, मैंने मटेरियल उसमें पूरा था लेकिन उसमें बाकी कॉस्ट एलिमेंट वो पूरे नहीं थे, तो मटेरियल वाइज हम उसको कंप्लीट यूनिट लेंगे। तो अब लॉस्ट यूनिट्स को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, लॉस्ट तो लॉस्ट हो गए, उसको हम बाद में देखेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है इन सब्सिक्वेंट जो सेशन होगा उसमें हम इसको देखेंगे कि लास्ट यूनिट का क्या करें, उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन यहाँ पे हमने लास्ट यूनिट को इग्नोर कर दिया है, और जब हमने उसको इग्नोर कर दिया है तो जो लॉस यूनिट की जो कॉस्ट थी वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगी बाकी यूनिट पे, ठीक हो गया। तो 45,000 और 4,000 49,000, क्योंकि हमने टोटल जो हमारे यूनिट्स थे हमने स्टार्ट की थी 50,000 जिसमें 1,000 लॉस्ट हो गए, तो 1,000 जब लॉस्ट हो गए तो बाकी रह गए 49,000। 49,000 में 45,000 कंप्लीट थे और 4,000 वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस में भी 4,000 मटेरियल वाइज कंप्लीट थे, इसलिए हमने इसको कंप्लीट यूनिट लिया है 4,000। तो टोटल units, completed units for material comes out to be 49,000. If we divide this cost has been added in the department. ये जो cost है ये पिछले डिपार्टमेंट से नहीं आ रही, बल्कि पिछला डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट डिपार्टमेंट इज फर्स्ट डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट ऐड हुई है, मटेरियल की कॉस्ट ऐड हुई, दैट इज 24,500। इफ यू डिवाइड दिस 24,500 by 49,000 we get 0.50 पर यूनिट कॉस्ट। तो ये मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास ये आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है लेबर जो कॉस्ट एलिमेंट है हमारा, लेबर का वही चीज़ है, 45,000 कंप्लीट और ट्रांसफ़र हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो ये हमें इसको कंप्लीट यूनिट लेंगे 45। अच्छा, बाकी 4,000 जो यूनिट रह गए हैं उसमें अगर आप ऊपर देखें फिजिकल क्वांटिटी, इसमें मेंशन है कि ऑल मटेरियल हाफ लेबर एंड एफओ। तो लेबर हाफ है इसमें, जो वर्क इन प्रोसेस 4,000 हमारे पास रह गए हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, हमारे पास 4,000 वर्क इन प्रोसेस में रह गए हैं, उसमें लेबर हाफ अप्लाई हुई है। दैट्स वाई दे आर जो है दे आर इनकम्प्लीट। सो दे हाउ मच दे आर कंप्लीट, हाफ वी विल टेक देम एज अ हाफ कंप्लीट। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 2 तो 2,000 रह जाए, तो ये टोटल हमारे पास जो इक्विवेलेंट यूनिट आ रहे हैं वो इट विल कम आउट टू बी 47,000। तो 47,000 जो यूनिट है दे आर कंप्लीट। तो ये लेबर इस डिपार्टमेंट में जो लेबर का कॉस्ट हमें आई है, जो हमने लेबर की पेमेंट की है या जो कॉस्ट आ गई है पेरोल की, तो वो है 29,140। तो इसको अगर हम डिवाइड करें इक्विवेलेंट यूनिट से 47,000, सो वी गेट 0.62 पर यूनिट। तो पर यूनिट हमारे पास लेबर की कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 0.62। नेक्स्ट कॉस्ट एलिमेंट जो है हमारे पास जो है दैट इज FOH, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसकी भी कंप्लीटेड यूनिट हम निकालेंगे उसी तरह, चूँकि बोथ कन्वर्जन जो ये कन्वर्जन कॉस्ट जो थे ना दोनों वो हाफ कंप्लीटेड थे, तो इसका भी वही इक्विवेलेंट यूनिट है जो लेबर का है। 45,000 कंप्लीट, 4,000 डिवाइडेड बाई 2, चूँकि हाफ FOH अप्लाई हुआ है तो 4,000 जो यूनिट है वो हाफ गिने जाएंगे, ठीक है। तो हाफ गिने जाएंगे तो 2,000 प्लस 45 तो 47,000। तो ये कॉस्ट हमारी FOH की आई है, या ये अप्लाइड होगी या एक्चुअल होगी, दोनों में से एक होगी, या ये एक्चुअल है या फिर ये अप्लाइड हमने लगाया था। तो 28,200 डिवाइडेड बाय 47,000 वी गेट 0.60। अब ये तमाम कॉस्ट हम ऐड करेंगे, तो अब आप देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वो अगर ये तीनों कॉस्ट हम ऐड करें, चूँकि प्रीवियस कॉस्ट कोई नहीं है, प्रीवियस डिपार्टमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो लिहाजा वो तो ज़ीरो हो गई। अब इस डिपार्टमेंट में ये वाली कॉस्ट जो है हमने ऐड की है, दैट इज 24,500 फॉर मटेरियल, 29,140 फॉर लेबर, 28,200 फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। तो टोटल कॉस्ट कम्स आउट टू बी 81,840, ठीक हो गया। अब और यूनिट कॉस्ट को हम ऐड करते जा रहे हैं, 0.50, 0.62, 0.60 और ये टोटल कम्स आउट टू बी 1.72, ठीक है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है, और यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी इस डिपार्टमेंट की जो टोटल यूनिट कॉस्ट है वो आ रही है 1.72 पर यूनिट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में
we will find out how much cost has been transferred to the next department and how much cost is applicable to work in process. जो एक तो जो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कॉस्ट ट्रांसफर की है वो कितनी है, और प्लस हम जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रह गई है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इसको इस तरह हम कर लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, इसको जो आखिरी स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप, वो है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो कॉस्ट अकाउंटेड किस तरह होगी, ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। हमने अगर आप ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज में देखें तो इसमें यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 45,000। तो 45,000 जो है विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट कॉस्ट 1.720। तो जब हम इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनिट कॉस्ट यही आ रही है, तो यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77,400 हमारे पास ये फिगर आ गई। इसके बाद हम अब वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है उसकी कॉस्ट निकालेंगे कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी है। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में जो है प्रीवियस कॉस्ट तो कोई नहीं, प्रीवियस डिपार्टमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। तो व्हाट वी डू, वी विल कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट 4,000 यूनिट्स चूँकि रह गए हैं वो मटेरियल वाइज कंप्लीट हैं, ठीक है। 4,000 यूनिट्स हमारे पास वर्क इन प्रोसेस वो, लेकिन वो मटेरियल वाइज कंप्लीट है, इसलिए हम उसको फुल यूनिट गिनेंगे। और उसको यहाँ पे हमने यूनिट मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट निकाली है 0.50, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वी विल गेट दी अमाउंट ऑफ मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन द वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री है उसमें मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है बनती है 2,000। सिमिलरली हम दूसरे कॉस्ट एलिमेंट भी निकालेंगे, दैट इज लेबर। लेबर का चूँकि 4,000 है, हाफ इसके कंप्लीटेड लेंगे क्योंकि दे आर हाफ कंप्लीट। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 2, ये 2,000 आ जाएंगे। और इधर हमने एक इसका पर यूनिट रेट निकाला है, वो है 0.62, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.62 मल्टीप्लाइड बाय 2,000, यानी 4,000 डिवाइड बाय 2, 2,000 हो जाते हैं क्योंकि ये हाफ कंप्लीट है लेबर वाइज। तो 2,000, तो ये हमारे पास कॉस्ट फिगर आई है 1,240। सिमिलर वी कैलकुलेट फॉर FOH फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी यही, उसके भी यही इक्विवेलेंट यूनिट है 2,000 इंटू उसका रेट जो है 0.60 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.60 इज वी गेट 1,200। तो अगर हम इन तीन कॉस्ट एलिमेंट को, ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट को हम अगर ऐड करें तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो क्लोजिंग है उसकी ये कॉस्ट आ रही है 4,440, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे, यानी दिस कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और दिस कॉस्ट रिलेट टू दी क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस। तो अब हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आती है, ये देखें हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है 81,840। अगर हम इसको देखें तो ये एग्जैक्टली मैच कर रही है ऊपर जो टोटल कॉस्ट की फिगर हमने कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये एक किस्म की रिकन्सिलेशन भी हो गई दोनों उसकी, कि हमने हमारी जो कॉस्ट है हमने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और टोटल कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट और जो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर वो दोनों मैच कर गए हैं कि कितनी कॉस्ट हमने ट्रांसफ़र की है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को और कितनी कॉस्ट अब वर्क इन प्रोसेस में इंक्लूडेड अभी है। तो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, अगर किसी का क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक दफा फिर रिपीट कर लें सारा, एक दफा रिपीट कर दें, ओवरव्यू दे दें। ओवरव्यू, अच्छा चले, ठीक है ठीक है। तो इसको फिर हम वापस चलते हैं। तो now we are learning what is meant by the cost of production and how it is constructed। कि ये जो cost of production जिसको CPR भी कहते हैं कि ये कैसे बनाते हैं और इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि एक स्टेटमेंट होती है ना, ऊपर नाम होता है, फिर नेम ऑफ द स्टेटमेंट होती है, फिर डेट होती है या पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो भी है। तो इसमें भी इसी तरह ऊपर कंपनी का नाम अगर आप देख रहे हैं, कंपनी का नाम है फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का नाम डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप डिपार्टमेंट का नाम नहीं डालेंगे फिर पता नहीं चलेगा कि किस डिपार्टमेंट की आप रिपोर्ट बना रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद है नेम ऑफ द रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद है वो जो टाइम पीरियड है कि टाइम पीरियड कौन सा है। इसके बाद अब फर्स्ट स्टेप इसका है क्वांटिटी स्केड्यूल के हमने फिजिकल क्वांटिटीज उसके जो वो देना है, काउंट देना है कि हमारे पास आए कितने, गए कितने और अभी ऑन हैंड कितने, इसका कंप्लीट काउंट हमने इसको देना है। तो उसमें अब ये है कि सबसे पहले यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितना हमने, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट में यूनिट हमेशा स्टार्ट किए जाते हैं। पिछले डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता, इसलिए स्टार्ट यहीं से होता है। तो हमने यूनिट्स कितने स्टार्ट किए हैं, अभी इसमें हमने ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिडर नहीं की, वो बाद में जाके करेंगे। तो ये भी हो सकता है जो हमारी इस डिपार्टमेंट की क्लोजिंग होगी, एक टाइम पीरियड की क्लोजिंग जो होती है, फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट की नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए वो फिर ओपनिंग हो जाती है। तो हेयर देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री, सो ऑल द यूनिट बिलोंग्स टू द यूनिट स्टार्टेड, जो यूनिट फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए गए वो है सारे यूनिट हमारे पास। तो यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस है 50,000, और इसको अब हम रिकंसाइल करेंगे यूनिट ट्रांसफर, जिसमें से out of 50,000 45,000 were completed and transferred to next department। ठीक है, हमने 50,000 हमने स्टार्ट किए थे, 45,000 हमने कंप्लीट और ट्रांसफर कर दिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑन हैंड कितने रह गए जो अभी कंप्लीट नहीं हुए फ्रॉम द मिक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी और प्रोसेस, लेकिन जो पहला प्रोसेस है दैट इज फिक्सिंग मिक्सिंग। तो मिक्सिंग का जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ वो कितने यूनिट है, दैट दे आर 4,000। तो 4,000 यूनिट ऐसे हैं जिसकी मिक्सिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और वो अब उसके डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, यानी कंप्लीट नहीं है इसलिए वर्क इन प्रोसेस है। तो उसमें मटेरियल तो कंप्लीट है लेकिन बाकी कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो हाफ अप्लाई हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंप्लीट। तो 4,000, और इसमें से जो कुछ यूनिट्स लॉस्ट हो गए हैं, लॉस्ट कितने हुए हैं 1,000। तो टोटल अगर हम इसको एडअप करें तो 50,000 हमारा काउंट कंप्लीट हो जाता है, यानी 50,000 हमने स्टार्ट किए, जिसमें 45,000 नेक्स्ट डिपार्टमेंट को कंप्लीट करके भेज दिए, 4,000 स्टिल इन प्रोसेस और 1,000 लॉस्ट हो गए, तो 50,000 कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कि इस डिपार्टमेंट को टोटल कॉस्ट कितनी चार्ज हुई है। इसके दो पोर्शन होते हैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। एक तो पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट आ रही होती है, लेकिन चूंकि दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट, सो जो पिछले डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा वो कॉस्ट जो होती ज़ीरो होगी। ठीक है, कॉस्ट। अच्छा, इसमें एक हम ये करते हैं कि हम दो कॉलम बनाते हैं, एक टोटल कॉस्ट का, एक यूनिट कॉस्ट का। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट द कॉस्ट रिसीव cost from previous department, that is zero because this is the first department, and we will see the subsequent जो उसमें है स्लाइड, इसके बाद जो स्लाइड आ रही है उसमें वो सेकंड डिपार्टमेंट को भी हम देखें कि वहाँ हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट जीरो सिंस इट इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट। सो द नेक्स्ट आइटम इज कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट। तो अब चूंकि पिछले तो डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ऐड हुई है, दैट इज मटेरियल। तीनों कॉस्ट एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, मटेरियल, और मटेरियल में हमने कितने कॉस्ट ऐड किए, मटेरियल वाइज 24,500, और इसकी जो इक्विवेलेंट यूनिट है, क्योंकि हमें एट द एंड हमें चाहिए कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट यूनिट हम मटेरियल के किस तरह निकालते हैं, 45,000 तो हमने कंप्लीट कर दिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दिए। 4,000 भी मटेरियली कंप्लीट है, ठीक है, उसमें ऑल मटेरियल लगा हुआ है, लिहाजा मटेरियल वाइज हमारे पास टोटल यूनिट है 49,000। एक 1,000 यूनिट लॉस्ट हो गए हैं, वो हमने गिने ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आ रहे हैं 49,000। अब 24,000 चूंकि हमने मटेरियल ऐड किया इस डिपार्टमेंट में, दिस इज डिवाइडेड बाय 49,000 इक्विवेलेंट यूनिट, वी गेट 0.50। तो ये हमारी यूनिट कॉस्ट आ रही है। सिमिलरली जो नेक्स्ट कॉस्ट एलिमेंट है दैट इज लेबर। अब लेबर जो है उसमें 45, उसी तरह हम इक्विवेलेंट यूनिट गिनेंगे, 45,000 हमने कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट भेज दिए। 4,000 जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस रह गए हैं वो हाफ कंप्लीटेड टुवर्ड द लेबर। सो हाफ अगर हम इसका लेंगे तो 2,000, 45,000 प्लस 2,000, 47,000 इक्विवेलेंट यूनिट हमारे पास आ गए। और टोटल जो हमारा पे रोल है तो वो है, जिसमें से डायरेक्ट लेबर जो है वो है 29,000,
टोटल पेरोल फॉर द डायरेक्ट लेबर इज 29,140, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट 47,000 से वी गेट 0.62, तो ये हमारे पास 0.62 आ गया पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद हम जो लास्ट कॉस्ट एलिमेंट है वो है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड Excuse me, sir. जी ये जो आपने 4,000 ऐड किए हैं, ठीक है, जी जी, और 49,000 का फिगर दिया है, ये जी अगर हम क्वांटिटी स्केड्यूल में देखें तो ये जो 4,000 है ये ऑल मटेरियल, हाफ लेबर एंड एफओएच के भी हैं, तो आपने सब मटेरियल को क्यों चार्ज किया? हाँ देखिए, हर कॉस्ट एलिमेंट के हम ना, हर कॉस्ट एलिमेंट के लिए हम इक्विवेलेंट यूनिट अलग से निकालेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट कॉस्ट एलिमेंट है मटेरियल, तो इसमें कहते हैं ऑल मटेरियल, इसका मतलब 100% मटेरियल लगा हुआ है इसमें। जो वर्क इन प्रोसेस जो है ना, इसमें मटेरियल कंप्लीट है, मटेरियल वाइज कंप्लीट, क्योंकि मटेरियल आगे जाके कोई भी ऐड नहीं होना है, मटेरियल फर्स्ट इन स्टार्ट ऐड हो जाता है। तो मटेरियल वाइज तो ये कंप्लीट है, सिर्फ इस कंप्लीट इनकम्प्लीट इस वजह से हैं कि इस पे अभी हमने लेबर कन्वर्जन कॉस्ट पूरी अप्लाई नहीं की, दैट्स व्हाई दे आर इनकम्प्लीट एंड दे आर इन वर्क इन प्रोसेस। तो वन कॉस्ट एलिमेंट तो कंप्लीट है क्योंकि द मटेरियल हैज बीन एडेड इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। स्टार्ट ऑफ द, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें स्टार्ट में डाल दिए जाते हैं मटेरियल, और कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि आहिस्ता 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 मटेरियल ऐड किया जाता है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे उसको, उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती। लेकिन यहाँ पे सर ये जो मटेरियल, जी सर ये जी जो जी 0.62 आया है, यूनिट कॉस्ट जो आई है, और 0.60 जो आया है, ये आपने किसको किससे डिवाइड कराया है? हाँ, मैं आपके बताता हूँ। 0.6 पहले मैं इसका ना, ये जो पहले क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। ये जो मटेरियल है, इसके जो हमने निकाले, ठहर इसको, ये मटेरियल जो है हमने ना इसके इक्विवेलेंट यूनिट निकाले किस तरह है। ये 45,000, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि 45,000 तो कंप्लीट है, क्योंकि वी ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ये कंप्लीट हो गया, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब जो हमारे पास एक ही चीज़ जो रहेगी, एक 1,000 हमारे लॉस्ट हो गए हैं, उसको हमने गिना ही नहीं क्योंकि वो लॉस्ट हो गए। अच्छा, बाकी जो 4,000 रह गए हैं, 4,000 जो है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है हमारे पास, क्यों, ठीक है, वो रह गए 4,000। अब वो 4,000 यूनिट जो है वो मटेरियल वाइज कंप्लीट है, उसमें और मटेरियल ऐड नहीं होना, वो मटेरियल वाइज कंप्लीट है, तो इसलिए हम मटेरियल के लिए वो यूनिट कंप्लीट गिनेंगे, ठीक है उसको। तो ये 4,000 प्लस 45,000 49,000 हमारे कंप्लीटेड यूनिट आ गए, ठीक है। तो कंप्लीटेड यूनिट आ गए हमारे। तो ये अगर ये 24,000 का मटेरियल ऐड हुआ है तो उसका पर यूनिट कॉस्ट आती है 0.50। ये हमने निकाला किस तरह है, 24,500 डिवाइडेड बाय 49,000, तो ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट कॉस्ट एलिमेंट है हमारे पास लेबर। लेबर का सर ये सर ये 24,500 ये कहाँ से है? कौन सा ये दिया हुआ होगा, और ये सर 24,500, हाँ ये हमें दिया होगा, दिस इज ये दिया हुआ है, बस ठीक ठीक ओके। ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन होगा। ये अभी हम आगे एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा आपको कि किस तरह राइट सर, ये आपके पास गिवन होगा, इसका आपके पास मतलब है कि वो एंट्री हुई होगी, ठीक है ना। आपके आप इसकी एंट्री पास करेंगे, आपके वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में ये आया हुआ है, ठीक है जी सर, ठीक है ना। तो इसकी बाकायदा तो जनरल एंट्री पास हुई होगी, तो इसके ये अमाउंट आपको नोन होगी। तो उसके बाद है लेबर। लेबर का भी हम पहले इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट कितने। 45,000 के बारे में तो कोई शक नहीं है कि वो कंप्लीट, हर लिहाज से कंप्लीट होके नेक्स्ट डिपार्टमेंट जा चुके हैं। अब जो वर्क इन प्रोसेस है उसमें जो 4,000 है वो हाफ कंप्लीटेड टुवर्ड दी लेबर, तो हम उसको इक्विवेलेंट 2,000 गिनेंगे, क्योंकि 4,000 का हाफ होता है 2,000। तो अगर हम उसको कंप्लीट यूनिट गिनेंगे ना तो वो 2,000 निकलेंगे, क्योंकि वो हाफ कंप्लीटेड है। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स टू बी 2,000 प्लस 45,000 इज 47,000। अब ये जो पे रोल है, डायरेक्ट लेबर का जो पे रोल है हमारे पास वो है 29,140 का, ठीक है। पे रोल जो हमारे पास पे रोल सेक्शन से आया है रिलेटिंग टू दी डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अगर ये याद रखिए कि पेरोल पूरा एक पेरोल आता है पेरोल डिपार्टमेंट से, उसमें इनडायरेक्ट लेबर का भी होता है। तो हमने वो पोर्शन निकालना है जो डायरेक्ट लेबर का है पेरोल का, ठीक है, जो पेमेंट लेबर को हुई, डायरेक्ट लेबर को हुई है, तो वो पोर्शन हमने निकाल दी है, ठीक है। वो पोर्शन हमने निकाल लिया, वो है 29,000, और इसकी हमने एंट्री पास कर दी है, जनरल एंट्री। अब ये जो हमारे पास 29,140 की फिगर आई है, दिस विल बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट 47,000, तो ये हमारे पास आ गए जनाब
0.62 पर यूनिट। ठीक है, ये पर यूनिट रेट आया है हमारे पास लेबर का। ये पर यूनिट ऊपर वाला 0.50 आया मटेरियल का पर यूनिट। पर यूनिट ये रेट आया मटेरियल का, दिस इज पर यूनिट फॉर लेबर। नाउ द नेक्स्ट जो है हमारे पास लाइन आइटम है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में भी वही इक्विवेलेंट यूनिट बनते हैं, क्योंकि कन्वर्जन कास्ट जो है वो हाफ कंप्लीटेड है। तो 45,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम 2,000, 2,000 प्लस 45,000 47,000। और ये हमारा जो 28,200 आपको याद, इट कुड बी इधर एक्चुअल या इट इज अप्लाइड। ठीक है, सपोज इट इज अप्लाइड, हमने अप्लाई किया है किसी खास रेट से अप्लाई किया है इसको, तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है। तो ये है 28,200 और इसका पर यूनिट कॉस्ट किस तरह निकलेगी 28,200 डिवाइडेड बाय 47,000 इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.60 है। इसके बाद हमारे पास जनाब टोटल कॉस्ट आ गई। अगर इफ यू ऐड अप ऑल दीज 3 आइटम्स वी गेट 81,840 और पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ रही है 1.72। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब तीसरा स्टेप जो है, अच्छा सर जी इसमें जो पर यूनिट कॉस्ट है ये भी ऐड होगी, टोटल बनेगी 1.72। हाँ जी बिल्कुल, तीनों कॉस्ट ऐड करें ना पर यूनिट, ये तीनों आप 0.50, 0.62 ये आपको 1.72 आएगा। देखिए ये हो गया। अगर इन दोनों को हम ऐड करें 0.62 और 0.60 तो 1.22 आएगा। ठीक है, 1.22 प्लस 0.50 1.72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद अच्छा सर ये जी सर ये टोटल कॉस्ट है 81,840 जो है ना, इसके जरिए भी तो ये निकाली जा सकती है 1.72। नहीं इस तरह नहीं निकाली, नहीं क्योंकि आप देखें ना हर आपके अलग निकलेगी। देखें अगर 49,000 देखें इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल का 49,000 है और लेबर का 47,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड के भी 47। यहाँ आपको अलग निकालनी पड़ेगी, वरना अगर आप अब इसको अगर आप 49,000 से डिवाइड करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, या 47,000 से करेंगे तो वो कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली आपको पर यूनिट कॉस्ट निकाल के फिर उसको ऐड करना है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम रिकंसाइल भी करेंगे, अभी हम इसको रिकंसाइल करेंगे। ठीक है, अब कॉस्ट तो हमें गिवन होगी ना, कॉस्ट सारी गिवन है, कॉस्ट सारी गिवन है, यानी आपको पेरोल की कॉस्ट भी होगी आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड फर्ज किया आपको ये गिवन है कि जी लेबर कॉस्ट गिवन है और FOH गिवन नहीं है, सिर्फ आपको परसेंटेज बता देते हैं कि वी आर कि इस परसेंटेज से अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 50% से अप्लाई कर दें ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या 100% से, या 200% से, तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं FOH अप्लाइड रेट। ठीक है, तो एनी हाउ बाकी कॉस्ट सारी गिवन होगी आपको। ठीक है, CPR बनाने के लिए। तो अब कॉस्ट, अब हम इस थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज द कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, कि कॉस्ट अकाउंटेड हम इसमें निकालते हैं कि कितनी कॉस्ट जो है हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेजी है और कितनी कॉस्ट अभी वर्क इन प्रोसेस में है। तो ये हम इस रिकंसाइल करेंगे उसको इस फिगर के साथ 81,840 के साथ हम इसको रिकंसाइल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट हाउ मच we will determine how much cost is transferred to the next department. So you can see that transfer to next department 45,000 हमने यूनिट भेजे हैं और टोटल जो हमारे पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो 1.72 की आ रही है। ठीक है, तो 45,000 मल्टीप्लाई 1.72 ये we'll get 77,400। ठीक हो गया, तो 77,400 की जो कॉस्ट है वहाँ हम ट्रांसफर कर चुके हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट डिपार्टमेंट को हमने ये सर जी इसमें जो आपने 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1.72 किया है, इसकी जगह ये 49,000 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 4,000 यूनिट भी तो इन प्रोसेस हैं, वो भी तो आगे आएंगे ना। हाँ, वो भी करते हैं 1 by 1, वो भी करते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट वी वांट टू डिटरमिन कि हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट भेजी है ना, पहले तो ये मालूम करें ना कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो आपने मटेरियल भेजे, मतलब पुश किया मटेरियल को, प्रोडक्ट को पुश किया नेक्स्ट डिपार्टमेंट, उसकी कितनी कॉस्ट है। देखिए प्रोडक्ट जो है डिफरेंट स्टेजेस से, प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट से निकलता है दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, फिर उस डिपार्टमेंट से निकलता है तीसरे, और फिर आखिर में फाइनल जो फिनिश गुड स्टोर रूम में चला जाए। तो जैसे जैसे ये मूव करता है तो कॉस्ट भी साथ इसकी मूव करती है कि कितनी कॉस्ट, ये अपने साथ कितनी कॉस्ट लेके आया है
पिछले डिपार्टमेंट से। जब एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट को पुश करता है प्रोडक्ट को, तो साथ कॉस्ट भी पुश करती है। तो वो हम ये मालूम करते हैं कि वो जब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में गया है तो अपने साथ पिछले डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट लेके आया है। ठीक है, तो ये वो कॉस्ट है जो लेके जा रहा है प्रोडक्ट अपने साथ दूसरे डिपार्टमेंट से, 77,400। ठीक हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जी हम 49,000 जी हेलो, अच्छा, अब नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द वर्क इन प्रोसेस। अब हमारे पास एक तो जो चीज़ रह गई है वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रह गई। एक तो 45,000 यूनिट तो हमने भेज दिए, और 1,000 जो लॉस्ट हुए हैं वो हमने उसको इग्नोर कर दिया, वो काउंट ही नहीं किए। ठीक है, अब बाकी रह गया जो कॉस्ट रह गई है वो 4,000 जो हमारे पास पड़ी हुई है, वो क्या नाम है, उसकी कितनी कॉस्ट है। ठीक है, वो कॉस्ट कितनी है जो हमारे पास इन्वेंट्री रह गई है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो किस तरह मालूम करेंगे। अच्छा, उसमें अब तीनों कॉस्ट एलिमेंट हैं। ठीक है, अच्छा, उस जो वर्क इन प्रोसेस हमारे पास है उसमें पिछले डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, पिछले डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आई। वो हमने स्टार्ट में देखा उसमें यहाँ पे अगर स्टार्ट में देखें ना, हमने कॉस्ट रिसीव फ्रॉम 0 तो चूंकि दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो वर्क इन प्रोसेस में इन्वेंट्री में भी पिछले डिपार्टमेंट के कोई कॉस्ट नहीं होगी। तो इसमें हमने क्या किया, मटेरियल हमने जनाब इसमें जो वर्क इन प्रोसेस में वो पूरा है, मटेरियल वाइज दे आर कंप्लीट। सो 4,000 हम इसको पूरे कंप्लीट यूनिट गिनेंगे। 4,000 इन्वेंट्री है तो 4,000 ही गिनेंगे, क्योंकि दे आर मटेरियल वाइज कंप्लीट। 4,000 इंटू मटीरियल का रेट हमने यहाँ पे, अगर आप को याद हो तो यहाँ पे हमने निकाला था 0.50। तो 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 मटीरियल है। वर्क इन प्रोसेस में जो मटीरियल है उसकी कॉस्ट है 2,000। अब इसमें लेबर की कितनी कॉस्ट है, उसकी इक्विवेलेंट यूनिट हम लेंगे 4,000 इंटू डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है कि ये लेबर जो है वर्क इन प्रोसेस में जो लेबर है वो हाफ कंप्लीटेड है, तो ये फिर हम 2,000 इसको लेंगे कंप्लीटेड यूनिट 2,000। और यहाँ इसका रेट हमने निकाला हुआ है ऊपर, अगर आपको याद हो 0.62, तो मल्टीप्लाई बाय 0.62, तो इट विल कम आउट टू बी 1,240। इसी तरह हम FOH का भी रेट निकाल लेंगे, उसकी भी इक्विवेलेंट यूनिट 2,000 है, मल्टीप्लाई बाय 0.60, ये ऊपर 0.60 हमने निकाला हुआ है 0.60, तो 1,200। अब ये तीनों को हम अगर ऐड अप करें तो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी हमारे भी, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हमारे पास आ गई 4,440। अब अगर हम ये जो कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए 81,840। तो इसका मतलब है हमारी वर्किंग बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखें, हमने दोनों को ऐड किया तो वी गेट 81,840 which is exactly matching with the above this figure। तो अब ये देखें, अगर हम इसको ये देखें, ये दोनों एग्जैक्टली मैच कर गए 81,840, और इसका मतलब है कि हमारी वर्किंग बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक हो गया। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है इसको यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं कराना, 1.72 से नहीं कराना, सेपरेट अलग अलग इनसे मल्टीप्लाई। हाँ, अलग अपना जो कॉस्ट एलिमेंट है ना उसके हिसाब से करना है, क्योंकि उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है हर टुवर्ड एवरी कॉस्ट यूनिट कॉस्ट एलिमेंट। मतलब मटेरियल वाइज कुछ है और कन्वर्जन वाइज कुछ है, तो इसलिए हमने उसको एक यूनिट कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन वो उसकी जो इक्विवेलेंट यूनिट है वो डिफरेंट है, क्योंकि मटेरियल वाइज तो वो कंप्लीट है, लेकिन कन्वर्जन का वाइज वो कन्वर्जन कॉस्ट वाइज वो कंप्लीट नहीं है, हाफ कंप्लीट है। तो इसलिए फिर हम उसको इससे मल्टीप्लाई। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में जो कुछ यूनिट जो होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं फ्रॉम एवरी रिस्पेक्ट। ठीक है, मटीरियल, लेकिन चूंकि वो एंड हो चुका होता है प्रोसेस, हमने अभी पुश नहीं किया उसको नेक्स्ट डिपार्टमेंट, लेकिन वो तैयार है, तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट अभी हमने इसको पुश नहीं किया फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, लेकिन इस डिपार्टमेंट वाइज वो कंप्लीट है, तो उसको हम फिर 1.72 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको फिर हम इस यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
क्योंकि वो फ्रॉम एवरी रिस्पेक्ट वो कंप्लीट हैं, ठीक है। उसमें फिर हम ये करेंगे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसमें फिर दो पोर्शन में हमें निकालनी पड़ेगी, एक जो बिल्कुल कंप्लीट है उसका अलहदा कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और जो कंप्लीट नहीं है उसकी कॉस्ट अलहदा निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जितने भी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो सारी इनकम्प्लीट है तकरीबन, वो उसमें कंप्लीट कोई यूनिट ऐसा नहीं जो फ्रॉम एवरी रिस्पेक्ट कंप्लीट हो, वो उसमें मतलब वो कन्वर्जन कॉस्ट वाइज वो कंप्लीट नहीं है, मटेरियल वाइज तो कंप्लीट है लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट वाइज कंप्लीट नहीं है। ठीक हो गया सर? ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग एस अकाउंटेड एस फॉलो है, ठीक है, इसमें हम सिर्फ उन यूनिट्स को डील करते हैं जो कि इन प्रोसेस हैं अभी? नहीं, इसमें हम जो कॉस्ट एक तो रिकंसाइल करते हैं कि हमने कितनी कॉस्ट पुश की है नेक्स्ट डिपार्टमेंट और कितनी कॉस्ट अभी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ी है उसमें वो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो दिस मस्ट मैच विद द कॉस्ट एट टोटल कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। तो ये असल में इसका ब्रेकअप है जो ऊपर 81,480 है ना, इसका ब्रेकअप इस तरह है कि या इसको रिकंसाइल इस हमने इस तरह किया है कि ज़ाहिर है आपने कॉस्ट आगे पुश तो करनी है ना, क्योंकि प्रोडक्ट जो है मूव कर रहा है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो जैसे वो पुश जैसे एक डिपार्टमेंट से फिजिकली पुश होता है दूसरे नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए ताकि उस पर वहाँ भी उस पर कुछ वर्क होना होता है, तो अपने साथ वो कॉस्ट भी लेके जा रहा होता है। ठीक है, आप कॉस्ट को भी पुश कर रहे होते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि वो तो हम ये मालूम करते हैं जो नए उसमें आया है डिपार्टमेंट में नए प्रोसेस में जो आया है तो पिछले डिपार्टमेंट से वो कितनी कॉस्ट लेके आया अपने साथ चला है। तो वो ये जब हम पुश करते हैं साथ कॉस्ट भी पुश कर रहे हैं तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमने कितना कॉस्ट पुश की है और इस डिपार्टमेंट में जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रहेगी क्लोजिंग उसकी कॉस्ट कितनी है। तो ये कॉस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए टोटल कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट जो ऊपर आपको नजर आ रहा है सेकंड उसमें यहाँ पे। तो ये मैच कर जब ये दोनों मैच हो जाएंगे इसका मतलब रिकंसाइल हो गया और हमारी वर्किंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक हो गया, इसको हम फर्दर हम समझेंगे एक्सरसाइजेज के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सेकंड डिपार्टमेंट में कैसे हम कॉस्टिंग करते हैं। ये तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है ना, इसमें इस फर्स्ट डिपार्टमेंट में चूंकि पिछले डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आ रही होती, पिछला डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो तमाम कॉस्ट जो है दैट रिलेट्स टू कॉस्ट एडेड इन दैट डिपार्टमेंट। लेकिन जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसमें ये होता है कि पिछले डिपार्टमेंट से भी कॉस्ट आ रही होती, तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करें वो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये अब ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट है, जो पहला डिपार्टमेंट था ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट था ना, मिक्सिंग डिपार्टमेंट था, अब ये ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में हम पहुंच गए हैं। अब ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में हम देखते हैं इसका क्वांटिटी स्केड्यूल देखते हैं, इसका क्या है यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। इसमें देखिए कि इसमें यूनिट रिसीव हो रहे हैं, इसमें यूनिट ऐड नहीं हो रहे बल्कि यूनिट स्टार्ट बल्कि जो भी यूनिट है वो पिछले डिपार्टमेंट से आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, वो है 45,000। ठीक है, 45,000 आप अगर आपको याद हो तो हाँ वो पुश किया गया था यहाँ पे देखिए 45,000 हमने ये 45,000 यूनिट जो हैं वो पुश हुए हैं यहाँ ये पिछले अगले डिपार्टमेंट। तो ये हमने जो पिछले डिपार्टमेंट से हमें यूनिट्स आ रहे हैं वो 45,000 आ रहे हैं। ठीक है, 45,000 आ रहे हैं। अब इसका हमने देना है काउंट देना है कि हमारे पास आए तो 45,000 थे, अब यूनिट ट्रांसफ़र कितने हुए और इनकम्प्लीट कितने और लॉस्ट कितने हुए, तो हम वो देंगे हिसाब किताब। तो यूनिट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट, अब आउट ऑफ 45,000 जो हमारे पिछले डिपार्टमेंट में से आए थे 40,000 जो है वी हैव पुश टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, वो हमने कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को पुश कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद स्टिल इन प्रोसेस कितने हैं 3,000, जिसमें जो है हाफ टू कन्वर्जन कॉस्ट है। ठीक है, 1/3 लेबर एंड FOR, तो 1/3 कंप्लीटेड हैं टूवर्ड लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। इन लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड को हम कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। तो दे आर कंप्लीट 1/3 कंप्लीट टूवर्ड labor and FO, that means conversion cost। बाकी जो है मटेरियल इस डिपार्टमेंट में ऐड ही नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट,
इसमें मटेरियल ऐड नहीं हुआ है। जो मटेरियल आना था पिछले डिपार्टमेंट मिक्सिंग डिपार्टमेंट से आया, यहाँ पे हमने सिर्फ ग्राइंड किया है, पीसा है मसालों को, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ ग्राइंडिंग की है और इसमें मटेरियल कोई भी ऐड नहीं हुआ, लिहाजा मटेरियल तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो है जनाब इसमें कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक हो गया। अब बाकी जो ये तो हो गया 40, ये 40,000 हमने भेज दिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट, 3,000 हमारे पास बच गए। अब 2,000 कहाँ गए? 2,000 लॉस्ट हो गए, ठीक है। अब देखें यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस 2,000, क्योंकि 40,000 हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट भेज दिए, 3,000 हमारे पास रह गए, तो बाकी किधर गए? बाकी लॉस्ट हो गए। तो ये टोटल काउंट हमारा पूरा हो गया, 45,000 हमने रिकंसाइल कर दिया। 45,000 ये क्वांटिटी स्केड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने हिसाब दे दिया एक एक चीज़ का कि अगले डिपार्टमेंट को हमने भेजे हैं 40,000, 3,000 हमारे पास इन हैंड है और 2,000 हमारे पास लॉस्ट हो गए। अच्छा, अब हम इसको नेक्स्ट जो स्टेज है वो है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट में हमने देखा, जी जी एक्सक्यूज मी सर, ये जो जी, जी। 45,000 हमारे पास है, क्योंकि ये जी। ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, तो जी, जी, यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, तो ये जो 45,000 यूनिट्स है ये क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट के फिनिश्ड यूनिट्स हैं? हाँ, यानी वो मिक्सिंग के लिहाज से, मिक्सिंग का जो प्रोसेस लिहाज है ना, उस ये लिहाज सर से वो फिनिश्ड उसी है। लिहाज से, हाँ जी, उसी लिहाज से वो ओके फिनिश्ड है, यानी मिक्सिंग के लिहाज से वो फिनिश्ड है, कंप्लीट है। यू मीन कंप्लीट ना? जो कंप्लीट यूनिट मिक्सिंग के लिहाज से कंप्लीट, मतलब जब हम मिक्स करते हैं ना, तो उसमें एक ख़ास क्वांटिटी के ज़रिए हम मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका एक रेसिपी होती है, तो वो एक ख़ास प्रोपोर्शन होती है, उस हिसाब से हम वो चीज़ें मिक्स करके, अगर मिक्सिंग डिपार्टमेंट है तो अगर ये चूँकि स्पाइसेस है तो स्पाइसेस की अपनी एक रेसिपी होती है, वो एक ख़ास प्रोपोर्शन में जो है वो मिक्स होते हैं और मिक्स होके फिर वो आगे ग्राइंडिंग के लिए जाते हैं। जब तक वो ख़ास प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं होती तो हम आगे भेजते नहीं हैं उसको, ठीक है। तो लिहाजा फिर हमने इसको जो मिक्सिंग के लिहाज से कंप्लीट होंगे वही आगे जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये जो 45,000 यूनिट आए ये मिक्सिंग के लिहाज से कंप्लीट थे, ठीक है। लेकिन ग्राइंडिंग के लिहाज से अभी तो ग्राइंडिंग का इस पे प्रोसेस जो होना है, तो अब यहाँ पे ग्राइंड हो रहा है, तो ग्राइंडिंग 40,000 पे ग्राइंडिंग कंप्लीट होगी और इसको हमने भेज दिया नेक्स्ट डिपार्टमेंट। 3,000 पे अभी ग्राइंडिंग कंप्लीट नहीं है और उसमें चूँकि उसमें ये 1/3 कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कंप्लीट है, बाकी कंप्लीट नहीं हुए, जिसलिए ये ग्राइंडिंग के लिहाज से कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इसमें कुछ पूरी तरह इस पर ग्राइंडिंग नहीं हुई। अब कुछ यूनिट ड्यूरिंग ग्राइंडिंग जो है वो लॉस्ट हो गए, ठीक हो गया। ड्यूरिंग ग्राइंडिंग कुछ यूनिट लॉस्ट हो गए हैं और वो है 2,000। तो उसको अगर ये हम काउंट करें टोटल तो हमारा 45,000 का फिगर कंप्लीट हो जाता है, रिकंसाइल हो जाता है कि कितने यूनिट कहाँ गए और कहाँ पे वो हो गए। इसके बाद है हम अब ये तो फिजिकल यूनिट हो गए। अब नेक्स्ट जो इसका क्या नाम है स्टेज है, दैट इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कि हम डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट चार्ज हुई है। अब इसके दो पोर्शन है, क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है। एक कॉस्ट तो पीछे से आ रही है, ठीक है, एक कॉस्ट जो है वो पीछे से आ रही है, यानी पिछले डिपार्टमेंट से आ रही है, और कुछ कॉस्ट हम इस डिपार्टमेंट में ऐड कर रहे हैं। दो किस्म की कॉस्ट है। अच्छा, इस ना 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट इज बीइंग चार्ज टू दिस सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट। फर्स्ट डिपार्टमेंट में एक किस्म की कॉस्ट चार्ज हो रही थी, वो एडिशन होती है उसी कॉस्ट उसी डिपार्टमेंट। लेकिन जो सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट होता है, इट आल्सो रिसीव कॉस्ट फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट, वो पिछले डिपार्टमेंट से भी कॉस्ट आ रही होती है और अपने डिपार्टमेंट में कॉस्ट ऐड कर रहा होता है। दो किस्म की कॉस्ट एडिशन हो रही होती है उसमें, ठीक है। कॉस्ट एडिशन दो किस्म की हो रही होती है, एक तो पिछले डिपार्टमेंट से चूंकि प्रोडक्ट पुश होता है पिछले डिपार्टमेंट से नेक्स्ट डिपार्टमेंट जाता है, तो वहां से अपने साथ वो कॉस्ट कैरी कर रहा होता है। तो एक कॉस्ट तो वो होगी। एक कॉस्ट जो है इस डिपार्टमेंट में, इस ये जो प्रोसेस है ग्राइंडिंग का प्रोसेस, इसमें भी तो कॉस्ट ऐड होगी, क्योंकि उसमें कॉस्ट अब कुछ ना कुछ कॉस्ट तो ऐड होगी तभी वो ग्राइंड होगा। तो कॉस्ट कौन सी ऐड हो रही है? एक कॉस्ट हो रही है डायरेक्ट लेबर की और एक कॉस्ट ऐड हो रही है FOH की। एक्सक्यूज मी। तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट आई है। ये 77,400, इफ यू रिमेंबर 77,400 जो है हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट आई है। तो और उसका जो रेट था वो 1.72 था, ठीक है। तो ये 77,400 जो हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से आई है। अब जनाब कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट,
कि अब इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं। ये तो कॉस्ट ऊपर 77,400 जो हमारे पास आ रही है, दिस इज रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट एट द यूनिट कॉस्ट एट 1.7 इफ यू रिमेंबर। ठीक है, ये हमने उसकी 1.72 कॉस्ट निकाली थी और ये टोटल कॉस्ट आ रही है। अच्छा, अब इस डिपार्टमेंट की कौन सी 77,400 जो है जिसका यूनिट कॉस्ट 1.72 है, ये बेसिकली 45,000 यूनिट्स की ही टोटल कॉस्ट है ना, जो लास्ट डिपार्टमेंट जी से जी आई जी है। जी जी, ये जो 77,400 है ना, एक्चुअली दिस इज ये 45,000 की कॉस्ट आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये जो हमारे पास यूनिट रिसीव हुए ना 45,000, इसकी ये टोटल कॉस्ट है 77,400। ये हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से पुश हुए हैं 45,000 यूनिट्स, और वो जब पुश हुए तो अपने साथ कॉस्ट भी लेके आए हैं, वैसे तो नहीं पुश हुए ना, ज़ाहिर है उसमें मटेरियल भी है, उसमें FOH भी है, उसमें सारी चीज़। तो हमने पिछले कॉस्ट ऑफ जो पिछली CPR है ना, उसमें ठहर मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। ये देखें, कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 45,000 इंटू 1.72 इट इज 77,400। ये कॉस्ट हमने पुश की थी नेक्स्ट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द 45,000 यूनिट। तो और इसका यूनिट कॉस्ट जो था 1.72 था, ये हमने निकाला यूनिट कॉस्ट ना, 1.72 इंटू 45 तो 77,400। अब यही कॉस्ट हमारे पास जो आ रही है वो है जनाब 77,400 की। ठीक है, यहाँ पे आ गई और इसका यूनिट कॉस्ट ये है। अब इस डिपार्टमेंट में तो कॉस्ट ऐड हुई है क्योंकि यहाँ ग्राइंडिंग का फंक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको हम मिसालों को पीस रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ कॉस्ट तो हम इनकर करेंगे। अब कौन सी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं? मटेरियल तो हम ऐड नहीं कर रहे इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, मटेरियल क्योंकि मटेरियल पीछे से आ रहा है, अब हमने सिर्फ उसमें एक फंक्शन अप्लाई करा, दैट इज ग्राइंडिंग, यानी उसको पीसना है, मसालों को पीस के उसको पाउडर शेप में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे जो कॉस्ट एडिशन हो रही है, जाहिर है उसमें कॉस्ट एडिशन तो होगी। कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट इज लेबर, एक तो हमने लेबर ऐड किया है। ठीक है, लेबर होगी। अब लेबर जो है, अब इसके इक्विवेलेंट यूनिट हमने कैसे निकाले? इक्विवेलेंट यूनिट 40,000 तो हमने कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे भेज दिए, प्लस 3,000 हमारे पास, अगर आपको याद हो तो 3,000 जो है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में पड़े हैं, वो 1/3 कंप्लीट है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो वो हो जाएंगे 1,000। तो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट लेबर के 41,000। तो ये हमारे पेरोल डिपार्टमेंट ने हमें ये फिगर दिए 37,350 फॉर द ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट की। यहाँ जो लेबर की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, वो ये आ रही है 37,310। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट से 41,000 से वी गेट 0.91। तो ये हमारे पास यूनिट कॉस्ट आएगा। इसी तरह हमारा FOH जो है वो हमने अप्लाई किया है, तो अप्लाई करके हमारे पास 32 या एक्चुअल भी हो सकता है। अब यहाँ पे जिक्र नहीं है कि ये अप्लाइड है या एक्चुअल है, तो हो सकता है ये एक्चुअल हो या हो सकता है ये अप्लाइड हो। तो ये हमारे पास फिगर आ रही है जो FOH की 32,800। तो इसका जो इक्विवेलेंट यूनिट कितने बंदे, 40,000 हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट कंप्लीट करके भेजी, 3,000 वही जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में है, तो वो 1/3 कंप्लीट है टुवर्ड FOH। तो उसके इक्विवेलेंट यूनिट मिलेंगे 1,000 प्लस 40,000 41,000। तो 32,800 डिवाइडेड बाय 41,000 वी गेट 0.80। ठीक हो गया, ये 0.80 जो है हमारी यूनिट कॉस्ट और ये फैक्ट्री ओवर। अच्छा, मटेरियल हमने इस डिपार्टमेंट में ऐड नहीं किया, एक्सक्यूज मी। अब हम जनाब इसको टोटल कॉस्ट एडेड जो है, अब टोटल कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट में ऐड हो रही है वो ये आ रही है। ये दो कॉस्ट तो इस डिपार्टमेंट में ऐड हुई हैं, ठीक है, प्लस ये जो कॉस्ट हमें पिछले डिपार्टमेंट से नहीं, इस डिपार्टमेंट तो ये ऐड हो रही है। अब ये जो पिछले, ये भी इसमें ऐड करेंगे हम। तो वो उससे पहले हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं लास्ट यूनिट में। यहाँ पे जो पिछले डिपार्टमेंट इधर तो हमने गिने ही नहीं है ना, इस डिपार्टमेंट में हमने लास्ट यूनिट गिने ही नहीं, लेकिन जो यूनिट लास्ट हुए हैं उसमें पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी लास्ट हुई है। ठीक है, वो चूंकि जो लास्ट हुए उसमें पिछले डिपार्टमेंट से भी कुछ उस जो कॉस्ट है वो भी लास्ट हो गई है। जो ये 77 हमारे पास, ये जो 77,400 की फिगर आ रही है ना, 45,000 की आ रही है, उसमें 2,000 लास्ट हो गए। उस 2,000 का हम यहाँ पे जो उसका एडजस्टमेंट देंगे 2,000 की, वो आती जीरो। ये हम बाद में हम फिर इसको डिटेल में करेंगे। इस वक्त सिर्फ आप इसको थोड़ी सी बस जहन में डाल लें, बाकी इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम बाद में देखेंगे।
ठीक हो गया। तो उसकी एडजस्टमेंट हमने दी है जो 2000 यूनिट लॉस्ट हुए हैं पर यूनिट। सर ये एडजस्टमेंट दोबारा समझा दें। देखें जब इस डिपार्टमेंट में तो हमने गिने नहीं है ना कि जब हम इक्विवेलेंट यूनिट निकाल रहे थे ना लेबर के इफेक्टिव, अगर आपने देखे तो इसमें हमने जो लॉस्ट यूनिट गिने ही नहीं है। 40,000 प्लस 3,000, अब 2,000 हमने गिने ही नहीं है लॉस्ट यूनिट। इसी तरह इसमें अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये जो ऊपर फिगर आ रही है 77,400, ये 45,000 की आ रही है। इसको हमने एडजस्ट करना है 43,000 पे। ठीक है, 43,000 पे हमने इसको एडजस्ट करना है इसकी कॉस्ट को। तो इसकी ये अगर 43,000 पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 2,000 तो लॉस्ट हो गए आपके, ख़त्म हो गए, तो जो 2,000 जो यूनिट लॉस्ट है उसकी भी प्रीवियस उसकी कितनी कॉस्ट थी, तो उसकी कॉस्ट फिर हम इस तरह निकालेंगे कि इसको अगर आप डिवाइड करें 77,400 डिवाइड बाय 43,000, तो वो कुछ 1 कोई मेरा ख्याल है 8 कुछ समथिंग निकलेगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट इसकी पर यूनिट बढ़ जाएगी क्योंकि यूनिट लॉस्ट हो गए हैं। पहले 45,000 यूनिट थे, अब 43,000 यूनिट रह गए हैं, तो कॉस्ट आपकी ये बढ़ जाएगी। तो अब वो जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो ज़्यादा होगी, तो उसकी एडजस्टमेंट हमने फिर एंड पे कर दी। या तो हम इधर कर लेते, इसको एडजस्ट यहीं पे कर लेते। ठीक है, जो पिछले डिपार्टमेंट से हमारे पास आ रही थी 77,400 एंड नाउ अब वो 45,000 तो नहीं रहे, 2,000 यूनिट लॉस्ट हो गए। तो हम इधर भी एडजस्टमेंट देख, लेकिन हमने एडजस्टमेंट नीचे दी है ताकि हमें ये पता चले कि पिछले डिपार्टमेंट से जो यूनिट पर यूनिट कॉस्ट ये आ रही थी, बाद में 2,000 यूनिट जो है हमारे जो है वो लॉस्ट हो गए, उसकी एडजस्टमेंट हमने एंड में दे दी है। ठीक है सर ऊपर अब भी ऐसे हम कर सकते हैं। जी सर इसकी एडजस्टमेंट इधर ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम इससे यहाँ पे करते नहीं है ऊपर। हम हाँ यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडजस्टेड लॉस्ट यूनिट एडजस्टेड। ठीक है, एंड पे देते हैं वो ज्यादा बेहतर है ताकि। ठीक है जी सर, ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ये अलग से मतलब अलग से एक हेडिंग के अंडर नहीं आती, इसको अलग से कैलकुलेट नहीं करते? जी अलग से वो ये इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप अलग से भी कर सकते हैं, वर्किंग शो कर सकते हैं, आप अलग से वर्किंग शो कर सकते हैं, इसके सामने भी शो कर सकते हैं हर एक का, ताकि यहाँ से ही पता चल जाए कि कैलकुलेट यूनिट कितनी है। ठीक है, इसके सामने से भी कर सकते हैं और अलग से आप शेड्यूल भी बना सकते हैं। ठीक है, वो नीचे बनाना पड़ेगा फिर आपको अलग से। तो इससे यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है कि कैलकुलेट यूनिट कितने हैं। यही वर्किंग आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी कि आपके कैलकुलेट यूनिट अगर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें इसके सामने से। जी जी सर ये जो एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट जो लास्ट में लिखा हुआ है 0.08, सर ये जरा सा दोबारा बता दें, ये किस तरह है, किसी को माइनस करने से है, किस तरह है ये? हाँ वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीका बताता हूँ मैं। ये 77,400 है ना, इसको ये है 45,000 यूनिट हमारे पास आए। ठीक है, तो 77,400 डिवाइडेड बाय 45,000, तो ये हमारे पास हैं 1.72। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा yes, sir. अब ये जो इसमें लेकिन अब मसला ये है कि 70 ये जो 45,000 यूनिट अब नहीं रहे हमारे पास, अब रह गए 43,000। 2,000 हमारे ज़ाया हो गए, 2,000 यूनिट ज़ाया हो गए। अब उसको तो एडजस्ट, अब पर यूनिट कॉस्ट उस पर एडजस्ट करनी है हमने जो ज़ाया हो गई। अब 77,400 को अब डिवाइड करें 43,000, तो नया कॉस्ट यूनिट निकलेगा आपके पास, क्योंकि 2,000 तो लॉस्ट हो गए ना। तो 77,400 को अगर आप डिवाइड करके देखें 43,000 से, तो आपके पास एक फिगर आएगी, वो आप निकालें जल्दी से, कितनी आएगी। ये आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है या वो करके देखे जरा जल्दी से। यस सर, हो जाता है। ये कितना आया? 77,400 डिवाइडेड बाय 43,000, 1.80 1.8 हो गया ना। अच्छा 1.8 आया। अब इसकी न्यू, जबकि हमारी इसकी ओल्ड पर यूनिट कॉस्ट थी 1.72, और अब जो नई यूनिट कॉस्ट आई 1.8, तो 1.8 माइनस 1.72, तो कितना डिफरेंस आया?
0.08। हाँ, अब देखिए ये एडजस्टमेंट हमने दी है। अब देखिए एडजस्टमेंट हमने यही दी है, देखिए 0.08 ये एडजस्टमेंट हमने इसमें ऐड कर, क्योंकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई है। पर यूनिट कॉस्ट 0.08 से बढ़ गई क्योंकि 2000 यूनिट लॉस हो गए हमारे। ठीक है, अब बात समझ आ गई। इसको अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम बाद में इसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कॉस्ट यूनिट, ये हाउ टू डील विद दी यूनिट लॉस। ठीक है, अभी सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। तो अब हम ऐड कर रहे हैं तमाम कॉस्ट। ठीक है, एक तो कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट है 70,000 और प्रीवियस जो पिछली डिपार्टमेंट से हमारे पास आ रही है वो 77,400। तो टोटल कॉस्ट जो कम्स आउट टू बी 147,510 और टोटल यूनिट कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस्ट यूनिट, तो हमारी टोटल कॉस्ट ये 3.51 हमारे पास आ रही है। ठीक हो गया। अब मूविंग टुवर्ड द लास्ट स्टेप जो है, तीसरा स्टेप है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कि हम इसके अब ये अकाउंट करते हैं कि कॉस्ट अगले डिपार्टमेंट में कितनी गई, पुश हुई है, हमने कितनी पुश की है अगले डिपार्टमेंट में, और कॉस्ट जो हमारे जो अभी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उसमें कितनी कॉस्ट है। तो अब देखिए जी जी सर, अगर यहाँ से हमने एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो 0.08 को 200 से मल्टीप्लाई करके निकाल नहीं सकते? वो बस डिफरेंट तरीके, मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया। ठीक है ना, वो फिर हम बाद में इसको डिटेल में देखेंगे, इसको डिटेल में बाद में कैलकुलेट करें। ये जिस अभी आप समझें, अभी तो हम बहुत अर्ली स्टेज पे है ना, अभी लास्ट यूनिट को थोड़ा सा मैंने आपको इसका बैकग्राउंड दिया, लेकिन अभी हम फिलहाल अगले जो 2 एक्सरसाइजेज उसमें लास्ट यूनिट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। पहले हम CPR को समझेंगे कि कंस्ट्रक्ट किस तरह होती है। ठीक है, अभी हम लॉस्ट यूनिट की तरफ नहीं जा रहे, लॉस्ट यूनिट की तरफ जाएंगे नेक्स्ट कल टुमारो जो सेशन होगा ना उसमें हम लास्ट यूनिट की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको इधर ही रहने दें लास्ट यूनिट को। तो हम फिलहाल ज़रा इस CPR को थोड़ा सा मज़ीद डिग आउट करते हैं। तो अच्छा, अब जो लास्ट सेक्शन है या वो है हमारा पास कॉस्ट अकाउंटेड। अब इसमें हम ये मालूम करते हैं कि हमने कॉस्ट पुश कितनी की है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। तो कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 40,000 हमने यूनिट्स पुश की हैं 40,000। अगर आपने क्वांटिटी स्केड्यूल में देखे तो ये 40,000 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 40,000 और ये हमारे पास एडजस्टेड कॉस्ट यूनिट आ रहा है जिसमें से हमने एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट भी किया है। तो ये लॉस्ट यूनिट का 3.51 इंटू 40,000, तो ये कॉस्ट हमने 140,400 पुश की है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। ठीक है, जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट या जो भी पैकिंग डिपार्टमेंट है उसमें हमने ये कॉस्ट हमने पुश की है। अच्छा, अब इसकी जो बाकी जो कॉस्ट जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस अब रह गई इन्वेंट्री, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में आपको याद हो कि पिछले जो वर्क इन प्रोसेस हमारे पास पिछली डिपार्टमेंट से भी कुछ आ रहा है, क्या नाम है, कॉस्ट आ रही है। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले डिपार्टमेंट की इंडस्ट्री, तो एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, अगर आपको याद हो तो 3,000 यूनिट्स जो हैं हमारे पास रह गए हैं, और ये तो हमारे पास पीछे जो पिछला जो कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट उसकी कॉस्ट यूनिट ये था, प्लस इसमें से 0.08 हमने एडजस्ट किया। तो नया जो कॉस्ट यूनिट है ना एडजस्टेड वो है 1.80। तो 1.80 मल्टीप्लाई बाय 3,000 तो वी गेट 5,400। ये वर्क इन प्रोसेस में पिछले डिपार्टमेंट में की कॉस्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट ये जो वर्क इन प्रोसेस है उसमें पिछले डिपार्टमेंट की भी तो कॉस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ऐड हुई है, वो है लेबर 3,000 इंटू, चूँकि लेबर 1/3 कंप्लीट है तो इसको कॉस्ट हमारे पास जो यूनिट कॉस्ट आ रही है 0.91 मल्टीप्लाई तो 910 ये आ रही है। और फैक्ट्री ओवरहेड की भी यही जो इक्विवेलेंट यूनिट है उसको 0.80 यहाँ पे जो कॉस्ट यूनिट निकाला था हमने ये, और ये जो ये करंट जो एडिशन हुई है वो है, ये ऐड करेंगे पिछले डिपार्टमेंट की, तो वर्क इन प्रोसेस की टोटल जो कॉस्ट आ रही है वर्क इन प्रोसेस की दैट कम्स आउट टू बी 7,110। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास वही फिगर आ रही है, अगर आपको याद हो ये और ये, और इस पे आप अगर वो लगाए, क्या नाम है, अभी ये कोई कर रहा है तो आप इस पे ना ये एरो ज़रा लगाएं, दोनों को कनेक्ट करें तो ये रिकंसाइल हो जाती है। ठीक है,
ये जो एक बच्चा कर रहा है इसको, तो उसको मैं कहता हूँ इसको कनेक्ट करें इसको। हाँ गुड, अजीज गुजर साहब इसको ज़रा कनेक्ट करें 140 और इसके साथ। हाँ वेरी गुड, नहीं आपसे हो नहीं रहा। बहरहाल ये 147 और 147 ये दोनों कनेक्ट हो गए, ठीक हो गया। तो ये जो दोनों कनेक्ट हो गए, ये नहीं ये एक जैसे ये रिकनसाइल हो गए हमारे। तो हमने इसके ब्रेकअप को रिकनसाइल कर 147। नाउ वी लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं, बड़ी क्विकली हम एक एक्सरसाइज लेते हैं, उसमें हर चीज़ हम इसको कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है। सर पीछे करें 1 मिनट, सर 1 मिनट पीछे करना, 1 मिनट पीछे करना। जी जी 1710। अभी टाइम क्या हुआ है सर? 1 बज गए, 1 बज क्लास का टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया। तो चलें फिर हम इस तरह करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, चूँकि इस पे हमें तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे, तो ये फिर टुमारो पे छोड़ देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, आप ये खुद करने की कोशिश करें, तो कल मैं इसको आके ना यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह करते हैं इसको, ठीक हो गया। ओके सर। ये हम इसको ये ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते, समझ लेते हैं एक्सरसाइज है क्या, ठीक है। ये एक्सरसाइज है प्रोसेस कॉस्टिंग एक्सरसाइज 1, कंपनी डिपार्टमेंट 1। अब इसमें ये गौर कीजिएगा कि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट 1। प्रीवियस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें फिर प्रीवियस डिपार्टमेंट की कोई कॉस्ट नहीं होगी। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है कॉस्ट फॉर द जून। अब टोटल कॉस्ट जो है वो एडिशन इन द डिपार्टमेंट हो रही है, पिछले डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आ रही। तो मटेरियल हमने अब देखा दिया हुआ है 71,750 और 78,750, लेबर है 56,708 और फैक्ट्री ओवरहेड है 45,500। दी क्वांटिटी स्केड्यूल शोज 20,000 यूनिट वर स्टार्टेड इन द प्रोडक्शन। अब हमने 20,000 जो यूनिट थे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो इसलिए वी स्टार्टेड 20,000 यूनिट इन स्टार्ट, ठीक है। हमने स्टार्ट किया 20,000 यूनिट से, और ड्यूरिंग द मंथ डिपार्टमेंट 1 एंड 15,000 वर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 2। अच्छा, तो मंथ एंड पे हमने जो यूनिट ट्रांसफ़र किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, वो है 15,000। तो 15,000 यूनिट हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट 20 स्टार्ट किए और 15 हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को पुश किए, ठीक है, कंप्लीट करके डिपार्टमेंट 1 वाइज कंप्लीट। यानी डिपार्टमेंट 1 में जो भी प्रोसेस हो रहा है, ग्राइंडिंग का हो रहा है, मिक्सिंग का हो रहा है, ब्लेंडिंग का हो रहा है, जो भी हो रहा है, वी कंप्लीटेड इट एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अब हमारे पास 5,000 यूनिट रहने चाहिए। अब 5,000 यूनिट रह गए हैं और इसमें लॉस्ट कोई नहीं है, लॉस्ट कोई यूनिट लॉस नहीं हुआ, कोई तो इसमें कोई वेस्टेज नहीं है, लॉस नहीं है। तो सारे के सारे यूनिट हमारे पास इंटैक्ट है। इसका मतलब 15,000 नेक्स्ट भेजे, क्योंकि 20,000 से हमने स्टार्ट लिया था, 15,000 हमने पुश किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, 5,000 हमारे पास रह गए हैं। अब 5,000 का क्या ब्रेकअप है? यूनिट स्टेट कंप्लीट इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ वर 50% कंप्लीट एज टू मटेरियल। ये मटेरियल 50% है कंप्लीट है मटेरियल वाइज, और हमारे 25% कंप्लीट है टू कन्वर्जन कॉस्ट। तो बाज़ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि फर्स्ट डिपार्टमेंट में भी स्टार्ट में मटेरियल नहीं डाला जाता है, बल्कि वक्फे वक्त से यूनिफॉर्मली डाला जाता है, ठीक है, मटेरियल। तो इसलिए जब वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है उसमें कंप्लीट मटेरियल नहीं है, उसमें मटेरियल कंप्लीट नहीं है, वो 50% कंप्लीट है मटेरियल वाइज। अभी मटेरियल भी डलना है इसमें, और वो दे आर कंप्लीट टुवर्ड 25% कंप्लीट टुवर्ड द कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक हो गया। तो इसकी आप ज़रा कोशिश करें आज इसको बनाने की, नहीं तो कल मैं इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि किस तरह CPR हम इसकी किस तरह बनाएंगे, एक्सेल में, एक्सेल शीट में आपको बताऊंगा। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह अब टाइम हो गया, तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। अपना तो हम इसको क्लोज करते हैं। आप शफीक साहब पता नहीं सुन रहे हैं मुझे कि नहीं? नहीं सर, वो सर नमाज पढ़ने चले गए हैं। अच्छा नमाज, तो ये फिर इसको सर मैं ऑनलाइन हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ सर, मैं बातें सुन रही थी आप लोगों की, आप लेक्चर ले, सॉरी जी जी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो आप कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं या
डिस्कनेक्ट नहीं करना बस इसको अब चूंकि फिर ये क्लोज कर दे 2 आवर्स हो गए तो फिर इसको अपना कल ले लेंगे इंशाल्लाह। चलें सर, देख लें अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग भी आपके पास है ना तो आप मैनेज करना जी जी चाह रहे हैं तो बता दीजिएगा, तो उसी के हिसाब से मैं अच्छा एडजस्ट। अच्छा चलिए ठीक है। चलो आज फर्स्ट डे है तो कल से इंशाल्लाह फिर मैं दे अगर टाइम स्लॉट है आगे तो फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। सर आप बल्कि आपके स्टूडेंट्स भी सारे ऑनलाइन है ना, वो सुन रहे हैं, तो उनके पास जो भी स्लॉट अवेलेबल है और जिसमें आपके पास भी फ्री स्लॉट हो ना तो अच्छा उसमें जी ले सकते हैं, ताकि 20 दिसंबर से पहले हम लोगों का जो ये कोर्स है कंप्लीट हो जाए। अच्छा मैडम कौन सी डेट से पहले? 20 दिसंबर। 20 दिसंबर? जी बेटा जी। इससे पहले तो नहीं होता जी। ये तो 20 दिन है टोटल, हमारा इसमें तो क्या कोर्स करना भी है? जब हुआ है। सर ये नहीं हो सकता सर जी, थोड़ा टाइम दें आप। चले 25 कर ले ना, 20 करें मैडम 25 दिन चले वो ये तो कोई बात ना हुई। चले ये सर आप। सर बेहतर बता सकते हैं कि ये 20 दिनों में 20 दिन रूटीन से तो है नहीं, 1 या 2 दिन क्लास होती है। सर काइंडली आप देखें ये कैसे करवाना है आपने प्लीज। अच्छा चले ठीक है, आप देख आदि लीजिए। देखे थे कौन सा तुम्हारा काम है। एक्स्ट्रा आवर्स आप लगाइए, आपके पास वीकेंड पे भी है टाइम अगर, तो आप हमें स्लॉट बता दें, उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि अब ये तो नहीं है कि फिजिकल में रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है या कोई इस टाइप का इशू है, और आपने भी घर से लेने और बच्चे भी चूंकि घर ही में बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है कि वीक में ज्यादा क्लासेस ले ली जाए। अच्छा सही है। चले ठीक है फिर बच्चे वो मुझे ज्यादा बता हमें लें। ओवरबर्डन ना हो जाए ना। नहीं बेटे, घर में बैठे हुए सिर्फ खा रहे हो और लेक्चर्स दे रहे हो, कोई ओवरबर्डन और नहीं होता समझना भी होता है। ओवरबर्डन। नहीं बेटे समझ आ जाएगी, तुम लोगों का काम ही पढ़ना है और कोई काम नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल। तो जॉब वगैरह भी होती है। चले मैम फिर मैं से ना ये सीआर से कंसल्ट कर लेता हूँ कि अपने वो अपना वो स्केड्यूल देख लें, तो अगर इनके पास स्लॉट है अवेलेबल है तो हम इंशाल्लाह ले लेंगे। हमें मुझे तो कोई मसला नहीं है। चले तो 25 हो गया सर जी। करें ना, जी चले आज फिर ये सेशन क्लोज कर देते हैं, अभी 2 आवर्स हो गए हैं, तो इंशाल्लाह कल फिर मैं इनसे कंसल्ट करके ना फिर आगे कर लेंगे। चले। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एंड करें।